Namaskar everyone. Good evening. Good evening, sir. So, um after a long time, we are again here after almost 1 week of break, and in between, I assigned you guys to sorry, I assigned you guys to make a report on steel sector companies. So, who is done with the equity report? Is there anyone who is done with the equity report, or anyone who has worked on it to some extent? Mithali? Yes, sir. Sir, I need extra 2 days to finish it It's actually. fine, it's good, no problem. So Thank you, actually, sir. I know that whatever you guys will be making, there will be many things to improve. So it's all right. You have made it. You have at least worked on it. That is the big thing for me. And what about others? Rachita Datta, Shriti Goel, Daljit. What about you guys? Sebastian, Sahil Sir, Agarwal. actually, Yes, Shriti. we didn't join in the last class, so we don't actually know what we have to do. It's all right. Okay. I will If be you can explaining it brief us once again about from the it. very zero level. So you guys don't have to be worried about it. Yuvraj, Yuvraj, Yes, sir. have you done your work? Anything? So it's still in the process. I would be able to complete it by next meeting. So which company assigned you? So Tata Steel. So first I will make about the sector report. After that I will. I haven't started with the Tata Steel, but I've almost completed my sector report. Acha, good. Steel sector report. Good. So in this session, I am going to take you guys ekdam step by step regarding how to write the equity research report. And unfortunately, the last class was not really that good because of my great internet service. So anyways, in this session, hopefully it is with God's grace, probably this will be a good class, and you guys will be able to learn something significant out of it. So is my screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Now, can you guys read what is written on my screen? Can you guys read whatever is written on my screen? Must to have components in an equity research report. Can you guys read these things? Yes, sir. Okay, fine. Hey, don't be so late. इतना लेट से ज्वाइन करोगे कैसे चलेगा? I have never been late to class. Always I provide the link before 7. Always join on time. Why not you guys? So these are the must to have components in an equity research report. And I'm telling you guys, it is not only limited to the steel sector, but any sector, any company that you guys will be analyzing from now on. It doesn't matter actually whether in future you become let's say you work in any commercial bank, or become a teacher anywhere in any school or college, or you guys do whatever you want. You guys do business, you guys do gambling, whatever you want. You guys invest in Bitcoin, but whenever you guys will be looking at any company from a share market investor perspective, so these are the things that should always be there in your analysis also. So मतलब कि भाई शेयर में इन्वेस्ट करना है, right? You want to invest in any share. These are the must to have components. These are the things that you must notice. Even if you are an investor, you just want to invest in stock market, you don't even bother to work as an equity research analyst, then also this is going to be significant. Even if you were a doctor, if you were a, let's say, English honors or anything, Hindi honors, anything, Sanskrit honors, anything, it doesn't matter. These are the things that you should always be looking at before investing in any company. And these are the must to have things in your equity research report as well. Now, why I am putting these two things together, मतलब कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग दोनों को एक ही तराजू में कैसे तोल दिया है कि भाई तराजू में भी नहीं तोले भाई, एक ही साथ एकदम मार्च कर दी. क्यों?
because the thing is that मतलब what is the point of writing an equity research report? Information is everywhere available, right? Annual reports पड़े हैं आपके कंपनी के वेबसाइट में पड़े हुए हैं. If it is not available for the if the annual report is not available, that means the company is newly listed. तो newly listed company है तो DRH पे available है, सब कुछ है. तो फिर ये बनाई क्यों? So the thing is that as a professional, if you want to become an equity research analyst, तो मतलब आपका responsibility ये होता है कि भाई a person जो कि who doesn't have any idea about any company, if he just reads your report once and only once, so that person he may be मने मतलब क्या बोले सिर्फ he just knows how to read English language, that's all. that उतना ही होना चाहिए कि भाई क्लास 10 का भी एक बच्चा इस रिपोर्ट को पढ़ के समझ जाए कि भाई इस कंपनी में ये चल रहा है, दिस इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर डैम कंपनी. ओके, इतना डिटेलिंग उसमें होना चाहिए एकदम फ्रॉम द बेसिक मैंने एकदम प्राइमरी फेसियल लेवल से लेकर के एकदम इन डेप्थ वैसा ही होना चाहिए कि उसको दैट इन्वेस्टेड दैट पर्सन हु इज गोइंग टू बी रीडिंग दिस रिपोर्ट, द रीडर ही देयर इज नो नीड फॉर द रीडर टू गो थ्रू एनी अदर डॉक्यूमेंट्स. योर रिसर्च रिपोर्ट शुड बी लाइक दैट मच विद इन डेप्थ ग्रेट डिटेल इट शुड बी. ओके, मतलब 5 years का एनुअल रिपोर्ट एंड इट्स समरी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट. ओके, प्लस लास्ट मोस्ट करंट मैंने नंबर ऑफ क्वार्टर्स अवेलेबल आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, मतलब कि दिस इज द Q3 रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर 31st of December 2021, राइट? So that was the Q3 of FY22. Now the Q4 of FY22 is going on, and post 31st March this Q4 of FY22 will complete, will finish, right? तो उसके बाद आपका एनुअल रिपोर्ट आएगा, राइट? तो अभी तो 3 ही क्वार्टर्स आपके गए हैं, एक क्वार्टर रनिंग है, राइट? 4th quarter इज रनिंग. तो ये पिछले 3 क्वार्टर का जो लेखा जोखा है, जो काम हुआ है, that information, that development regarding this company, from where you guys are going to gather this information. So the sources are con-call transcript. खुद से जाके con-call सुनिए एटलीस्ट ऑफ लास्ट 2 or 3 लास्ट 2 or 3 आपका क्वार्टर्स का, और प्रेस रिलीज इज देयर, और आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स आर देयर, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस आर देयर, न्यूज लिंक्स आर देयर, राइट? सो एनीथिंग, लेट्स से सी दिस इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, राइट? क्वार्टरली मिलता है ये सब कुछ, ये हर रोज नहीं मिलता है आपको. कॉल हर रोज थोड़ी ना मैनेजमेंट रखेगा, मैनेजमेंट पागल हो जाएगा वैसे सवालों के जवाब दे देंगे. एनीवे, सो फॉर दैट मतलब कि आपका पास्ट मैंने पोस्ट आपका 31st of December 2021, इफ एनीथिंग हैज happened in the company, so what could be the source of information for that particular happening, for that particular incident, is that news leaks. तो आपको let's say कि developments related आपका टाटा स्टील, तो टाटा स्टील में क्या हुआ है, कहाँ पे ये लोग expansion plans कर रहे हैं, कहाँ पे where they are planning to get into a JV, where they are going to get माने the coal mines, तो वो सब कुछ कहाँ पे क्या लीज ले रहा है, कहाँ पे क्या कैपेक्स करेगा, कहाँ पे क्या रिपेयरिंग्स हो रहा है आपका ग्लोबली ऑन कॉन्सल बेसिस, व्हाट इज देयर माने न्यू अपडेट, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट्स विथ whom they are doing their tie-ups, at what point they are rising their price. Actually you guys must have heard कि last week the steel companies have माने hike their price, right? लास्ट हफ्ते प्राइस हाइक हुआ है, तो उसका डेटा आपको कहाँ मिलेगा? that data will be available from news leaks, right? Not from con-call or anything, because con-call तो आपका है past data, but अभी लास्ट लेट्स से आपका क्वार्टर एंड हो गया है, उसके बाद से whatever development has taken place in the business, in the sector, in the industry, in the economy, you will be finding those things from news leaks, from news websites, आपका news channels, right? Everyone, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the presentation, if you guys have gone through it, I do not know, probably most of you haven't gone through that video on our YouTube channel. I do not know why you guys hate those videos and do not watch those videos. Anyways, if it is bad in quality, please personally tell me na कि sir मजा नहीं आया, the video was not good. Then only I will be able to improve these things na. I also need inputs from your side. तो the thing is that वैसे आपको न्यूज़ भी पढ़ने होंगे, राइट? एकदम आपका एक जो इक्विटी रिसर्च का ये था, उसमें मैंने लिखा था कि ऑनगोइंग रिव्यू, व्हाट आर द 5 स्टेप्स ऑफ इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग. लेट मी जस्ट शो यू once again so that you guys do not miss anything from your research report. Yeah, this one. Let me just show you. So I have clearly stated that
what are the 5 steps involved in any equity research report writing. And this is not only equity research report writing. You want to invest in any company, then also this is the rule, this is the thumb rule. You can be a doctor. I know no doctor is here, but हाँ आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हो, कहीं भी हो सकते हो. आप इंडियन इक्विटी में करो कि ग्लोबल में करो, यूएस के करो कि चाइना के करो, कहाँ के करो, आई डो नॉट केयर. बट दिस आर द मेन 5 स्टेप्स. मतलब इफ यू फॉलो, there is a very narrow chance that you will be missing anything from your analysis. And this is the framework that we personally follow in our own company. And our own company means the name of our founder, you guys know, is Vasudev Shankara. And this firm actually he is in the market since 2015. 1995, and in 2015 he established this firm. And after that he made this framework. And now I think some of you even was there in that conversation where I discussed what is our asset under management and all those stuff. So anyways, so this is the ongoing review part. माने the thing I said ना कि regarding this news, आपके जो news आते हैं quarterly results के बाद का, quarter end होने के बाद का, वो that is a part of ongoing review, right? That is a part of ongoing review. And आपका annual report आपका मिल गया था when you got your annual report, it was as at 31st of March 2021. बट उसके बाद से जो क्वार्टरली 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसका भी तो आपको इंक्लूड करने होंगे, प्लस ऑनगोइंग रिव्यूज, आपका न्यूज़ क्या हो रहा है, राइट? एंड व्हाई न्यूज़ इज सो इम्पोर्टेंट ना, इफ यू लेट्स से सी इट हैपेंड, मतलब आई फॉलोड इट वेरी वेल. इट हैपेंड विथ दिस कंपनी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. व्हाट वाज द नेम? अरे इट वाज रन बाय Gwenka. जस्ट अ सेकंड. What was the name? It happened with this company. I will just remember the name and tell you. So it happened with this Welspun Corporation. So it happened with this company called Welspun Corporation. It happened in 2017. So at that time the share price of the company was 100 rupees, and the share price has risen money from the level of I think 5 or 6 rupees, and this is money post splitting of the shares and bonus and all those stuff. So ये सब होने के बाद it was trading at 100 rupees. So at that time I did the analysis that I could do at that time. At that time I didn't have this kind of so much of understanding of this frameworks and all those stuff, but हाँ मैंने किया था. तो but where I got beaten was that I didn't do the ongoing review. So मतलब 5 रुपये के प्राइस से 100 रुपीज़ हुआ है, and it was not a penny stock. All right, the market cap of that company was around like 8 to 9,000 crore rupees at that time, and it was in the textile business. तो उनका अरे यार it was in the textile business, that company Welspun Corporation. तो उनका क्या था कि भाई आपका मिडिल ईस्ट में they used to sell पर्दा होता है ना, मतलब cartons and all those stuff and carpets and all those stuffs, आपका they used to sell those things, pillow covers and all those stuff. the quality was super there, and in any mall their product used to be available there. but उनका क्या हुआ कि cotton का जो वहाँ पे वो लोग जो सोर्सिंग करते थे ये कंपनी जहाँ से, वहाँ पे इन लोगों को हिट हो गया, एंड कुछ कारणों के चलते एक पर्टिकुलर मॉल था उसके साथ इन लोगों का मेन टाई अप था. मतलब जहाँ पे भी दिस मॉल विल बी देयर, दिस कंपनीज प्रोडक्ट विल बी देयर, इट वुड बी शोकेस्ड एंड दे विल हैव वन शॉप ओवर देयर. सो देयर बिजनेस वाज लाइक दैट विद दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो वहाँ पे दिस कंपनी गॉट बीटन इन दिस 2 ways. मतलब आपका रॉ मटेरियल साइड से भी इट गॉट बीटन, एंड देन पोस्ट दिस ये मॉल के साथ भी जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक्चुअली मॉल प्लस मतलब ये जैसे आपका यू हैव दिस वॉलमार्ट काइंड ऑफ अ थिंग, दैट काइंड ऑफ अ रिटेल चेन वाज देयर, दैट आल्सो हैड देयर बिजनेस, एंड आल्सो प्लस मॉल्स का भी था. एंड आई जस्ट हर्ड अबाउट इट लिटिल बिट, बट मैं बहुत ज़्यादा ऑनगोइंग रिव्यू आई डिडंट डू इट, मतलब इन डेप्थ एनालिसिस नहीं किया. मैंने सोचा कि भाई कितना होगा, क्या होगा, हाँ ठीक है होता है, बट आई वॉज सो फूल इनफ टू मैंने देखा नहीं. एंड एक्चुअली दैट पर्टिकुलर पार्टनरशिप ने इट वॉज कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 20% टू द कंपनीज एंटायर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% कंट्रीब्यूट करता था दिस साइड. एंड रॉ मटेरियल साइड में भी ये कन्फर्म्स हो गए थे, एंड एट द टाइम कॉटन प्राइसेस वर ऑल्सो राइजिंग. तो मतलब उतना मैंने कवर नहीं किया टिल द लास्ट क्वार्टर. आई फॉलोड लाइक एनीथिंग वेरी वेल, एंड आफ्टर दैट कि इतना मैंने मिस कर दिया. एंड यू वोंट बिलीव आई ऑलमोस्ट सोल्ड दैट शेयर अराउंड 48 रुपीज़, एंड आई बॉट दैट अराउंड 103, 104. तो बट उसमें 50% तो लॉस हुआ, दैट्स ऑल राइट, बट द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई लॉस्ट इन दैट वॉज टू ह्यूज एट दैट टाइम. द पोर्टफोलियो दैट आई हैड एट द टाइम, मतलब आई हैड ऑलमोस्ट लाइक 25% ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेशन इन दैट स्टॉक, and I lost a huge amount. So this is the importance of this ongoing review.
ठीक है, and our objective is not only to make you an equity research analyst, because you can get into investment banking, financial analyst, anything you like. Okay, corporate banking में जाओ, retail में जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ आप, investment banking, M&A जहाँ पर जाओ, private equities में जाओ, but these are the things, मतलब कि these are the things to help you to empower yourself to become a better investor also, as well as a good professional also. But these are the things, मतलब कोई भी any भी company इसको follow करता है, right? तो I think you guys have heard of this formula called QGLP. Have you guys heard about it? QGLP by Motilal Oswal. QGLP बोल के बहुत popular formula है. It is super. Anyone, any investor, any share market enthusiast, anyone who has some amount of interest in the share market, they know it. QGLP. Quality, growth, longevity, and price. So what does it mean actually? We have one ekdam super investor in India. His name is Ramdev Agarwal, and he is the joint founder and MD of Motilal Oswal Financial Services Limited. And this firm, my father has personally used their product. My father had Demat account with them. So although their service with the Demat account was not so good at that time, my father had a Demat account with them around from 2017 mid till 2019 or just little before the COVID thing. But yeah, their Demat account service at that time, at that particular point of time, was not so good. But their research is something. Really something. And this person, I have actually told many of you guys. I think Lakshmi most probably was there in that meeting. I do not remember clearly, but yeah. So there I told you guys to follow few people. You guys should actually write down their names. Please write down their names. Take a copy, take a pen and write it down. I'm going to tell those names. Just write it down. I will also tell you the websites of those companies and all those stuff. If you guys can go through it, if you guys can क्या बोले digest it, तो कुछ ना कुछ तो होगा बेटा, बहुत मजा आएगा. थोड़ा नाम लिख लीजिए. कुछ 4-5 नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा. Only 4-5 names I will tell you guys. तो write it down. Take a copy and pen and please write it down. This is going to be super important and something really significant and helpful in your life. If you have any love for any small amount of love for equities, just do it. Whenever you guys are ready, please tell me. And this is also part of the I am not going off track. This thing is a part of it. Whenever you guys are ready with the copy and pen, please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Others. Yes, sir. Yes, sir. Chali. Yes, sir. Okay. तो first write down. मतलब मेरे लिए मैं अच्छा I am going to suggest these names as per my own convenience because I like them in this order. Although it is in a reverse order, but yeah, for me understanding this person's philosophy, this person's psychology, this person's way of working, it is much more approachable and understandable for me. So please write down this name called Basant Maheshwari. BASANT Basant Maheshwari. Please write down this name. Probably you guys might be knowing these names, but some of you might be loving these guys or some of you might be hating these guys, but it doesn't matter, just write it down. Yes, Avak, please mute. देखिए हम लोग सबने So the name of this person is Basant Maheshwari, and he runs the company Basant Maheshwari LLP. So वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. And he has a book called The Thoughtful Investor. You don't have to buy this book. If you want, I can share some of the pages after scanning those pages. I can share that. So I actually have this book, and I happen to know his wife also, Pooja Maheshwari. So he has made a fortune of around like 800-900 crores now. But my God, his wife is so humble. During COVID, I purchased one book from them to this The Thoughtful Investor to read because I really like this guy.
मतलब सच में इतना अमीर है बट कोई घमंड नहीं है, नो नॉट इवन अ मैंने सिंगल पॉइंट ऑफ घमंड नहीं है इन लोगों में, दे आर सो सिंपल, मतलब सुपर यार। एक्चुअली आई वॉज हैविंग सम डिले टू गेट द डिलीवरी ऑफ द बुक, तो एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कोलकाता, actually he is from Kolkata, but yeah, currently he has shifted to South Bombay, but he actually used to stay very close to my house and unfortunately I was never able to meet him, but yeah, I talked to her then, मतलब बात किए बहुत बार but उसके बाद opportunity नहीं मिला नहीं बस। तो this person is really interesting. Second one is I like is Sunil Singhania. This person is a genius, no doubt. Anyone can like this guy. He is a genius, no doubt. Sunil Singhania. Now, who is this person? Gold medalist, chartered accountant. Probably he was All India rank 1 or whatever. I do not know. But yeah, Sunil Singhania. Plus, he was the क्या बोलते हैं chairman of CFA Institute globally. He is a qualified chartered accountant plus CFA charter holder. And he used to manage a fund of 1 lakh crores. And currently, he has a fortune of 3,500 crores. And he is running Abacus Asset Management. Super person. If you can, initially you guys will be facing little bit of difficulty in order to understand his ways of working and his words, because his wisdom is super. थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाए ना, मतलब क्या बोले वो एक कहावत है कि भाई चरण अमृत एक शब्द है, सो उतना भी भाई मेरे को मिल जाए तो भाई मैं तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, वो नोस थोड़ा मिल जाए तो बस खत्म हो गया मेरा लाइफ सेट। ही इज सच अ पर्सन। So the next person I am going to recommend is this person called Ramdev Agarwal. Write it down, Ramdev Agarwal, and the company's name is Motilal Oswal. The fourth is Saurav Mukherjee. Please write down his company's name. It's important. Please write down his company's name. Merciless. I don't know the actual spelling. I have forgotten. Probably Mercellous. Probably this is the spelling. But yeah, you can just Google it out. Please Google it out. This name, this particular company's name, Merciless Investment Managers. Mercellous. Most probably this is the spelling. Merciless Investment Managers. He is a genius. If you can understand him, तो मने हो गया खत्म. Super. And any other person? There is one person called Nilesh Shah. From Kotak, he is also a genius, but हाँ बहुत ज़्यादा हाई-फाई हो जाएगा फिर, he is quite हाई-फाई, तो उनको छोड़िए. But easily understandable is at least these 3 or 4 guys, and the formula that I mentioned, QGLP, quality, growth, longevity and price. This formula was made by this person called Ramdev Agarwal from Motilal Oswal. So if you just follow this formula na, actually this is also a part of our own company's practice. We also in our company we also follow the same formula. Not exactly, but yeah, definitely we kind of copy this formula also during our equity research report writing. So Q is quality. Quality means I have explained this thing to all of you, probably most of you in various other classes, कि भाई एक बिजनेस है, राइट, एक बिजनेस है जो कि अच्छे क्वालिटी का बिजनेस है, गुड क्वालिटी बिजनेस प्लस गुड क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स ह्यूज रिटर्न, एक्सपोनेंशियल रिटर्न. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? इन्फोसिस. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? TCS, राइट. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? अदर एग्जांपल्स, HDFC Bank, राइट. सो दिस इज द ग्रेट बिजनेस प्लस ग्रेट मैनेजमेंट फॉर्मूला. दिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटी आई एम सेइंग. सो दिस इसमें क्या क्या आ जाता है? बिजनेस का एनालिसिस प्लस मैनेजमेंट का एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस प्लस मैनेजमेंट का एनालिसिस. छोटा नोट लिख लीजिए इसको. दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग थिंग. ओके, सो ग्रेट बिजनेस, ग्रेट मैनेजमेंट मीन्स ग्रेट रिटर्न. अच्छा, ग्रेट मैनेजमेंट प्लस बैड बिजनेस देन ऑल्सो ठीक ठाक रिटर्न. ग्रेट मैनेजमेंट प्लस बैड बिजनेस मीन्स फिर भी ठीक ठाक रिटर्न. व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ इट? इंडिगो. मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस बहुत भयंकर है, डेंजरस बिजनेस है, तो फिर भी ठीक ठाक रिटर्न. अच्छा, फिर और क्या बोले? और एक है आपका घटिया बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट हो गया. अच्छा, घटिया बिजनेस, घटिया मैनेजमेंट. ओके, डेंजरस बिजनेस एंड एकदम घटिया मैनेजमेंट. व्हाट कुड बी द एग्जांपल?
एनी गेस? गेस कीजिए, घटिया बिजनेस, घटिया मैनेजमेंट, गेस कीजिए। बहुत पॉपुलर गेस है, बहुत पॉपुलर है। Zomato. Zomato is not घटिया, not so घटिया। Cox and Kings घटिया बिजनेस एंड घटिया मैनेजमेंट। रुचि सोया में क्या गलती है? पेटीएम नहीं, पेटीएम इज अ ग्रेट बिजनेस, मैनेजमेंट भी ठीक है, बट हाँ अभी चल नहीं रहा है ठीक से। अच्छा है पेटीएम, अभी मैं खरीदने के लिए आई एम नॉट गिविंग एनी बाय रिकमेंडेशन, मैंने व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, मतलब थोड़ा तो इश्यूज है बिजनेस ऑपरेशन में अभी। एक्चुअली द थिंग इज दैट मैंने दे एक्सपेंडेड सो वाइडली, नाउ दे आर नॉट एबल टू कंसोलिडेट दैट थिंग, एंड देन द सेम थिंग हैपेंड विद दिस पतंजलि ग्रुप आल्सो। इतना एक्सपोनेंशियल दे एक्सपेंडेड ना, मैंने दे वर नॉट एबल टू हैंडल दोज काइंड ऑफ ग्रोथ। तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है, होपफुली दे विल डू वेल, दे शुड एटलीस्ट, आई एम मैंने होपिंग कि भाई अच्छा ही करे, ये कंपनीज डूबे नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट। क्योंकि छोड़िए इसको, ठीक है। तो घटिया बिजनेस, घटिया मैनेजमेंट। किसी ने विजय माल्या के बारे में सुना है? और आपका क्या था, किंगफिशर? घटिया बिजनेस, घटिया मैनेजमेंट नहीं है क्या? वो मैनेजमेंट अच्छा है, या फिर वो लाल रंग के पानी पी के नहीं अच्छा है? नहीं, घटिया बिजनेस है, घटिया मैनेजमेंट है, योर किंगफिशर, राइट? तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब बिजनेस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बिजनेस में, इन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज कि भाई मैनेजमेंट कैसा है, हाउ इज द मैनेजमेंट। नाउ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अच्छा बिजनेस बट not so good management, then a good management came and super turnaround. What could be the example? Eicher Motors. The business was good, two-wheeler ka business was good, actually they were in many commercial vehicles, tractors, all those stuff, but this new management came, मतलब उनका बेटा ही आया, आके सब कुछ एकदम चेंज कर दिया। So business was good actually, management was not so many strong, not bad but not so strong management. Not so good management means I am talking about integrity of that management as well as the capability of the management. Okay, so management analysis, how to do management analysis, this is a very critical thing. अभी भी I would say I haven't mastered, mastery का छोड़ दीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं समझा है मैनेजमेंट एनालिसिस का अब तक। 7 साल हो गए मेरे बाजार में रहते हुए, कुछ नहीं सीखा मैनेजमेंट के बारे में अभी तक। उसको छोड़ दीजिए, मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा उसको, बेसिक थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, बट उससे ज़्यादा तो नहीं। एंड मैनेजमेंट एनालिसिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, उसी में बहुत लोग अच्छे बड़े खिलाड़ी मार खा जाते हैं शेयर बाजार में। मैनेजमेंट कैन डू एनीथिंग, राजा को फकीर को राजा बना सकता है। सत्यम कंप्यूटर्स वाज अ ग्रेट कंपनी, राइट? एट दैट टाइम व्हेन सत्यम कंप्यूटर्स वाज देयर, एट दैट टाइम तो मैंने ऑल दिस ब्रोकरेज हाउसेस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, एवरीवन वाज गिविंग बाय रेटिंग्स, बाय रेटिंग दिस व्हाट बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस अवार्ड आल्सो दे गॉट इन आई थिंक 2009। उसके बाद अरे भाई बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अवार्ड मिला, आई थिंक इट वाज अराउंड 3-4 डेज बैक, एंड 3-4 डेज बाद क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या 3-4 दिन में ही खत्म हो गया। सो भाई इतना एक्सटर्नल पीपल है, दे आर सो स्मार्ट पीपल एंड वी आर जस्ट मैंने प्यूनी नथिंग, आई एम तो नथिंग कंपेयर टू देम भाई। एनी सीनियर एनालिस्ट इन ICICI Securities who is having 5 years of experience there, he is like God to me, really he is God to me, he knows so much, but still those kind of analysts who are having 10, 15, 20 years of experience, they are giving buy rating and the stock collapse. Same thing happened with DHFL. So management analysis is not an easy job. Never. Management analysis is very difficult. But हाँ, business analysis, okay. It's this is the job ना. वो करना तो आता ही है, सभी को करना चाहिए एटलीस्ट, वो इजीली सीख भी जाओगे आप लोग। So we will teach you that. Don't worry. So this was the part of Q. Now G, growth. Growth means एकदम briefly I am telling you. Growth मतलब we are considering CAGR. सिंपली समझ लीजिए CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या चल रहा है, ठीक है? उसका भी बाइफर्केशंस आई विल बी गिविंग यू, डोंट वरी। नाउ QG हो गया, देन L लॉन्जिविटी, हाउ लॉन्ग दिस कंपनी कैन सस्टेन इट्स ग्रोथ, इज दिस ग्रोथ सस्टेनेबल, और मतलब ग्रीन शूट्स हो रहे हैं एंड इट विल जस्ट इवेपोरेट, लाइक व्हाट कुड बी द एग्जांपल्स? ग्राफाइट इंडिया, देन HEG, देन Philips Carbon Black, and in this business there was a company called Gua Carbon. So I was at that time it was in 2016 I invested in this company called Gua Carbon and I made huge profit. Okay, it almost went up like 6 to 7x,
And at that time I didn't have any idea what is accounting manipulation. Still I do not have any idea. Okay, still I do not have any idea about this accounting manipulation. Why I am saying, Carbon में there was an accounting ghapla, and I couldn't find it out. I couldn't figure it out, but I happened to meet one senior portfolio, not senior, but yeah, he was a portfolio manager at Edelweiss. So he came to my house to, my father was talking to him, and then I was very young. I went to him and told him ki, "Arey sir, you are trying to sell my father portfolio management. See what return I have generated." He looked at it, he kind of smiled at me, and he said, "Okay, you have earned good profit, very good, but this is not going to work, this is not going to sustain." I asked why. He said ki they are manipulating their accounts, they are creating fake vouchers, they are doing it like that. कि आपको कैसे पता? ठीक है, आप एक काम कीजिए, आपको रखना है रखिए, लॉस होगा आपका होगा। मैंने कहा नहीं, बताइए। तो he explained the thing to me, and it actually happened in 2018 that company just crashed, the share just crashed, and it was the same thing, accounting manipulation. तो भाई longevity, how they are doing it, and is it see, मतलब ये थोड़ा accounting manipulation का fight होगा, and how to find it out, figure it out in a basic way, we will be teaching you, don't worry. But this longevity thing that I just mentioned, see, for these companies like HEG, this Graphite India, na, it was not the longevity was not there in the business growth. They were exponentially growing their top line and bottom line, but it was not sustainable, right? मतलब कुछ China से they had some issues, so these companies got their orders. So this was not a sustainable thing. They got this opportunity, so they made huge profit, but it was not sustainable. It was not consistently compounding. Is accounting manipulation the same case with Lehman Brothers? Lehman Brothers का तो subprime crisis हुआ था. Kind of आपका जो credit rating का जो था, it was kind of related to it, but it was मतलब entire system was into it. कोई भी सिर्फ आपका वही नहीं था, आपका ये था, उससे पहले भी एक छोटा कंपनी था, they first actually fell, उसका नाम क्या था? Bear Stearns. I may be pronouncing it wrongly, but it was like that, Bear Stearns or something like that. That company first fell. Actually the entire system was into it. BlackRock was मजे ले रहा था. BlackRock is not a दूध का धुला, all right, and all this Goldman Sachs, this Morgan Stanley, then JP Morgan, all of them were involved in it. Actually everybody was knowing कि भाई actually में accounting manipulation, it was not literally accounting manipulation, but भाई fake था ना सब कुछ. मतलब क्या हो रहा था कि आपका कोलेटरल्स है, कोलेटरल्स तो कुछ भी नहीं था, आपका डेट है, उसके ऊपर डेट, उसके ऊपर डेट, उसको बोलता था निंजा लोन. मतलब आपका NI मतलब नो इनकम, NI NJ नो जॉब, NINJA, एंड क्या बोलता था उसका, मैं भी भूल गया, चलिए, नो इनकम नो जॉब, एंड कोई आपका क्या बोलते हैं मॉर्गेज कुछ नहीं था, वैसा वाला था, उसको निंजा लोन बोलते थे. उसको जाके गूगल कीजिए कि व्हाट वाज द निंजा लोन, ऑलराइट. तो दोस काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर. मतलब उसमें तो एंटायर सिस्टम वाज इनटू इट. तो सभी लोग एक्चुअली दिस थिंग वाज नॉट न्यू. दिस ड्यूरिंग दिस .com बबल ना, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, एक्चुअली इट वाज काइंड ऑफ एन अकाउंटिंग मैनिपुलेशन आल्सो, यू कैन से, प्लस मेनी अदर थिंग्स. So I am so small to explain all those things, but yeah, definitely during .com crash also it happened. How can retail investors find accounting manipulation? Audit report, yes, definitely audit report. You guys have to go through it, and not only audit report. So see those videos that I share on YouTube. You guys do not watch it. It's up to you. But yeah, there I have shown how to read notes to accounts. I have read each and every single letter, not what. Each and every single letter I have read there for you guys. I have taken candidates through each and every letter. Let's say in my screen I can see Mitali, I can see Yuvraj. So I took candidates through the notes to accounts like this: MITALI, Mitali, Shahu, Shriti, Goel, Yuvraj, Segal. Like that I have taken you guys through all these things in that video, in all those videos. So those things are so in depth. तो उनको जाके देखेंगे, एटलीस्ट थोड़ा तो आइडिया होगा. अकाउंटिंग मैनिपुलेशन का स्टिल आई डू नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ एनीवन इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट विद सम गुड एक्सपीरियंस of at least 3 to 4 years, they definitely can. They can. I won't say definitely, because see, those who are making all these research reports and those who are doing all this audit stuff, all these things ना, मतलब they are not क्या बोले, they are not so बेवकूफ़ नहीं है भाई. They are not so foolish, but still they are not able to figure it out all the time. And many times you guys must have seen, actually it is considered as a red flag if any auditor resigns.
कोई ऑडिट फर्म अगर बोलता है कि भाई मेरे को काम नहीं करना है, आई एम रिजाइनिंग, इट कुड बी अ रेड फ्लैग, बट नॉट ऑलवेज, बट या most of the times it is so. And if any company is showing so much exponential growth, थोड़ा always it should not be doubted, but yeah, definitely थोड़ा तो doubt करके देखना चाहिए. An example of it was Quality. I have mentioned this name many n number of times. They were manipulating their accounts like anything. So actually I happened to watch one video. So मैंने मतलब उसमें he just gave a little hint. अच्छा, take down one more name. Varinder Vansal. VARINDER VANSL. I think VANSL. Okay, whatever. Varinder Vansal. This person is the founder of Om Capital. Om Capital. So he is also मैंने a super एकदम sharp, intelligent equity analyst. So you can also follow this guy. मतलब ही उनका काम है कि वो बहुत ना एकदम मैंने बारीकी से एकदम मैंने बच्चों जैसे वो समझाते हैं, तो उसको भी अगर आप समझ लो तो बहुत बढ़िया है. ये लोग जो है जिनका भी मैंने नाम बताया, ये लोग मैंने सुपर जीनियस, बट ही इज ऑल्सो जीनियस, बट या थोड़ा लेवल कम रख के समझाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल में जाके नहीं समझाते ये आदमी जो है. तो ही इज एक्चुअली अ इक्विटी एनालिस्ट एंड ही यूज्ड टू वर्क इन CNBC TV18 फॉर ऑलमोस्ट लाइक 13-14 years. Now he has separately he is working. He has founded his own firm, running his own PMS and research equity research service he is providing, research reports he is selling, and he is a great guy. He is a really good person, really great, knowledgeable person. Anyways, accounting manipulation आपका जो था .com बबल के टाइम पे, उसमें क्या था कि भाई ये हम लोग यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे दिखा रहा है 23, मतलब एटलीस्ट 22 मेरे को छोड़ के 21 होगा, मतलब 21 लोग हैं यहाँ पे. सो इन माई स्क्रीन आई कैन सी अनिकेत इज देयर, Sesh there, Lakshmi there, Yuvraj there, Shriti there, Mitali there, Daljit there. Okay, and I am here. So what used to happen कि Yuvraj, you book a place on my website. अब मैं क्या करूँगा, रिवर्स आपके वेबसाइट में बुक करूँगा, मतलब you are booking a space on my website, let's say for 1 crore rupees, and I am also booking that website on your मैंने website for 1 crore rupees. मतलब मैंने आपसे 1 crore लिया, I took 1 crore from you and I have shown it in my books of accounts and shown profits and all those stuff, and then again I have sent that 1 crore rupees to you and showing कि भाई मैंने उनके वेबसाइट पे बुक किया है. वैसा करके कुछ उन लोगों का उस टाइम पे अकाउंटिंग फ्रॉड था. देन आपका उसमें भी था क्वालिटी का, तो बोला क्वालिटी का वो मैंने मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी, तो पैकेज्ड मिल्क जैसे कि आपका अमूल का मिल्क होता है वैसा ही. देन आइसक्रीम्स प्रोड्यूस करते थे, ऑल दो स्टफ, बटर एंड ऑल दो स्टफ. देन आपका 1% बेवरेजेस बोल के एक कंपनी था. इज देयर एनीवन हु हैज हर्ड ऑफ दिस कंपनी 1% बेवरेजेस? दे हैड अ प्रोडक्ट कॉल्ड मैंगो सिप. आई डो नॉट नो किसने मैंगो सिप पिया कि नहीं पिया. आई टेस्टेड इट once or twice, आई डिडंट लाइक द टेस्ट. यस सर. तो उसका प्रोडक्ट कैसे, मतलब इतना हाई सेल्स दिखाता था, उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट मार्केट में है कहाँ, प्रोडक्ट बाजार में दिखना चाहिए ना. So that was one hint. So actually it happened, मतलब actually my father is also माने into equity. Okay, and I got this equity का कीड़ा from him. Okay, so he was into this equity market. He has been in the market for quite long time, but he has separate profession. But yeah, he does it for माने savings and investment thing. तो he asked me कि इसमें देख तो क्या चल रहा है, ये इतना अच्छा कर रहा है, थोड़ा चेक करो. तो आई चेक इट एंड आई फाउंड कि कुछ घपला है. सो आई सेड कि भागो, रन. एक आपका मीम था, वैसा हो गया था. तो आई डिड दिस, आई सेड दिस टू माय फादर, ही आल्सो चेक्ड, ही सेड कि रन, एंड वी जस्ट रन अवे फ्रॉम द कंपनी, वी डिडंट इन्वेस्ट इट. तो अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस कैसे समझे, उसका वीडियो इन डेप्थ सेशन होगा, डोंट वरी, बट अभी समझा नहीं सकते, बहुत डिटेल है, बहुत झमेला है, अभी नहीं. ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं. तो QG हो गया, अब हो गया L लॉन्जिविटी में कितना सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ, दैट इज द पार्ट. नाउ QG LP, दैट इज द प्राइस. प्राइस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. प्राइस इज मतलब कि आपका वैल्यूएशन क्या चल रहा है, राइट, एट व्हाट प्राइस यू आर गेटिंग. यू नो, ऑल ऑफ यू नो, वॉरेन बफेट सेड कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट, राइट. सो दैट इज द एक्चुअली माय वेरी सिंपल एंड नाइस डेफिनेशन ऑफ इट, राइट. Just hold on for a second. Just hold on for a second.
sorry about that. Yeah, so quality, growth, longevity I have explained. Now price. So if you just look at this small PPT, so we have one thing here called valuation analysis and forecast, right? So you guys know about financial modeling, valuations and forecast, these three things, right? Mitali has done a good course on financial modeling and valuations. So financial modeling and valuation actually is the money 30 to 35% of the job in equity research. मतलब कि अगर 100%, if you consider entire equity research report writing as 100%, this only one item consists 30 to 35%. Now Paytm ka someone said something about Paytm. So when it got listed for price, can we use DCF model? बहुत कुछ करना है. DCF करने से आपका कैश फ्लो डिस्काउंटेड होगा. मिताली, फाइनेंशियल मॉडलिंग थोड़ा सा समझाइए क्या होता है. यू हैव डन द कोर्स ना, थोड़ा सा समझाइए क्या क्या होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग में. सर उसमें तो बहुत कुछ होता है. जस्ट यू हैव टू लर्न स्टेप बाय स्टेप. स्पेशली यू हैव टू नो व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फर्स्ट, and you have to know advanced Excel. Then you have to know how to value all the project. Then equity research. You have to know DCF. You have to know cash flow statements. How to evaluate the revenue models and all. There are so many things. And what is sensitivity analysis? Sir? What is sensitivity analysis? It was there a part in your financial modeling also. Yes. Yes, sir. What is that? Can you please explain? सर स्पेशली फॉर एग्जांपल एक बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटी है आउटपुट में, उसको एक मैथमेटिकल मॉडल में हमको शो करना पड़ेगा स्पेशली. हाँ, बट सेंसिटिविटी क्यों बोला जाता है? मैथमेटिकल मॉडल में वी आर गोइंग टू प्रोजेक्ट, मैंने पुट द एंटायर बिजनेस ओवर देयर. एंटायर बिजनेस में व्हाटएवर इज हैपनिंग, मैंने न्यूमेरिकली, कैन यू सजेस्ट अ कोर्स फॉर इट? वेल एफर्ट से ही कर लो प्रतीक. वी आर गोइंग टू कम अप विद 2 more courses, not right now, we are in process. तो many things Daljit, many things. Only उतना नहीं, बीटा का थोड़ा और कुछ है, अभी वो सब नहीं. तो anyways, financial modeling, valuations and forecast, this is the small part of this price analysis. Okay, so QGLP, quality, growth, longevity and price. So this is the part of it, but we are not covering this valuation analysis and forecasting thing in our this particular equity research training. Okay, why we are not including this thing? Mithali just explained it to you. You have to learn advanced Excel. Okay, I am assuming all of you know it, but without having proper understanding of the financials, all the existing financials, valuation भूल जाओ, forecasting छोड़ दो, मत देखो उसके तरफ. अभी make the basics, and whatever you guys will be learning from this training, if you learn it properly, if you dedicatedly learn this thing, then all these things is going to become an input for your further financial modeling and valuations. उसके बिना मतलब this is like the क्या बोल, this is the root को छोड़ के fruit तो नहीं होगा. Now what's your choice? You want to first go for the fruit or you want to go for the root? आपकी मर्जी. fruit चाहिए ठीक है, बाजार से खरीद के ले लो, but it is not your own. उठा के ले लोगे, कुछ formulas डाल दोगे. So we have to take care of our roots, which is very important. And people actually quite often find the root thing very boring. Actually it is. If you look at a tree, who is going to put the hand on soil and make it dirty? Everyone wants the fruit. भाई सेब ले लो. सेब के पीछे एक खेती करने में कितना ज़्यादा है, क्या जाता है, एटलीस्ट सेब का मैं नहीं जानता, आम का मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल. तो आम का खेती कैसे होता है, आई हैव सीन इट. ठीक है, मेटिकुलसली. इफ इट इज़ ओनली 1, 2 or 3 years of old tree ना, तो flowers will come, little flowers will come. मतलब if you bite it, मतलब इतना कड़वा है, you will like थू. It is like that. But उसको you have to remove. You have to put filth on the root, मतलब shit फेंकना पड़ेगा, ठीक है, टट्टी और क्या बोले भाई, लैट्रिन देना पड़ेगा उसके रूट में. But that will make a tasty fruit ना. You guys are eating mango and thinking, wow, it is so yummy, so amazing, so sweet, and the mango season is just going to come. But the root of it is क्या बोले, लैट्रिन. तो ये लैट्रिन थोड़ा हजम कर लो, उसके बाद फ्रूट मिलेगा भाई. थोड़ा पेशेंस रख के लैट्रिन भी हजम करना पड़ेगा, तभी जाके फ्रूट मिलेगा, नहीं
तो बाजार से खरीद लो बस, बट उसमें क्या होगा, मतलब बाजार से खरीद लो मतलब इक्विटी में क्या, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, पीएमएस कर दो, कोई बुराई नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद दैट। एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर एक्चुअली प्लांटिंग ट्रीज एंड देन वेटिंग फॉर द फ्रूट? मोस्ट ऑफ अस वी जस्ट बाय इट फ्रॉम माने मार्केट ना, बट इफ यू नो हाउ टू कल्टिवेट इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वी आर इंटरेस्टेड इन द कल्टिवेशन प्रोसेस, वी आर इंटरेस्टेड इन द एग्रीकल्चरल प्रोसेस। फ्रूट तो मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा, बेटर मिलेगा, फ्री में मिलेगा। तो अप टू यू हाउ यू आर विलिंग टू टेक इट फॉरवर्ड। एनीवेज, तो दिस वीडियो ना माने दिस पीडीएफ दैट दिस पीपीटी दैट यू आर seeing, we have one particular dedicated video on this. I will be sharing the link in the knowledge value search group just after this session is over. All right, now let us take all of you through this thing. This is the work that you guys have to do. Okay, please read this thing. Please read this thing. Whatever is written here, just read it. Everyone, please just read it. Whatever is written here must to have components in an equity research report about the company, just like this. Keep reading it. And I will share this my Microsoft Word file with all of you. Don't worry, so that you do not miss any point in your equity analysis. I will be sharing this thing. I will be sharing the equity research PPT also, although it is in a video form in a much more better way explained. But yeah, I will be sharing that PPT also with all of you, because I have seen many of you, every one of you making huge mistake in the sectoral report writing. तो क्या करें भाई? I thought that we would take it in a professional way, but नहीं, आप लोग तो वही अभी भी वही कॉलेज मोड में हो, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट के मोड में हो। So in a student mode this thing only work, this written down instructions only work. In corporate life it doesn't work. Whatever we were doing so far ना, मतलब इंस्ट्रक्शन दिया छोड़ दिया, that is the professional way of working. आपको खुद से ढूंढने होंगे। You are called if you become an equity research analyst, you will be called as equity research analyst. Research मतलब in हिंदी it is अनुसंधान करना, analysis means विश्लेषण करना। आपको खुद से ढूंढ के अनुसंधान करके आपको डेटा लेके आना है, उसके बाद आपको उसमें एकदम घुस के विश्लेषण करने होंगे उसको, ठीक है? तो that is the work for you, that is actually the work. फाइनेंस एनालिस्ट बनो, कुछ भी बनो, that is actually the work. But we were trying to teach you in a professional way, but the result was so bad. So we are kind of shifting towards वही old school आपका training course kind of a thing, which we never wanted. If you guys learned it in a professional way, you guys could have learned many more, much more. But yeah, whatever way works, it works. वही करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? Earlier candidates were saying कि सर मज़ा नहीं आया, ठीक है, मज़ा ले लो, मज़े के पीछे का जो सजा आएगा वो आपका है, हमारा क्या? पढ़ो, क्या पढ़ा आप लोगों ने? क्या पढ़ा आप लोगों ने? बोलिए। सर वो सारे चीज जैसे कि इन फाइनेंशियल मॉडल इक्विटी रिसर्च वैल्यूएशन में आता है ना, रेवेन्यू ड्राइवर्स, कंपोनेंट टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम्स एंड ऑल। So like in DCF model, how to calculate? We have to know all the things like R&D, market share, growth and valuations. So I told you ना कि that whatever you make in a financial model, we will take you till the input point. Inputs आपके हाथ में सभी होंगे, उसके बाद financial modeling, that is a completely different ball game. आप पहले ये this is the past point thing, past analysis हो गया, future projections वो आपका financial modeling valuation forecast में आएगा. And also part of past analysis is also there. Anyways, let me just take you through it. So must to have components in an equity research report. Equity research report बनाने हैं. So these are the must components that you must have in your report. Otherwise, it is not a report. First, read about the company. First you read it from company's website. Go through that damn company's website. Scroll down, read it. Whatever is written there, just read it from company's website only, not from Wikipedia. We do not consider any data from Wikipedia. मतलब उसका data is so much manipulative. It's very very bad, so ridiculous. Never read from Wikipedia. At least for the companies, don't read from Wikipedia. Just read from company's website. Open the company's website, read it. अच्छा. About the company you are reading. Then from annual report and from investor presentation, you should be reading about the company. So what you should include in your research about the company. First, about the company,
you know and let your readers know. ठीक है, पहले कंपनी के बारे में आप अपने रिसर्च रिपोर्ट में एक्सप्लेन कीजिए. यू जस्ट एक्सप्लेन अबाउट द कंपनी, व्हाट द कंपनी डज. नाउ व्हाट आर द थिंग्स, की हाइलाइट्स which will help readers to get to know about the company, like what the company does in order to earn. कमाने के लिए कंपनी करता क्या है भाई, बेचता क्या है, कंपनी कमाता कहाँ से है, ये समझो पहले, एंड ये पहले इंक्लूड कीजिए. फाइन टिल दिस पॉइंट एवरीवन? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी. एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. What is Blue Ocean strategy? Definitely I will explain. Yeah, खेल है. जो आपने पॉइंट्स मेंशन किए, सो मतलब यही स्ट्रक्चर में जाना है कि ये मतलब is it somewhere included in the middle of report or is it in the starting point? If you have a better format, definitely go for it. Definitely go for it. This is the, मैंने ये कोई पीपीटी भी नहीं है, you can see it. Just मैंने लिख दिया. Okay, ये सेशन से पहले मैंने just इसको put it here. तो आप इसको जहाँ पे करें बेहतर है, बट आप खुद ही सोचिए कि एक कंपनी के बारे में यू वांट टू नो, तो उसका फ्लो क्या होगा. पहले आप कंपनी के बारे में जानोगे ही नहीं, उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके करोगे क्या? व्हाट्स द पॉइंट कि भाई कितना रेवेन्यू ग्रोथ आ रहा है, क्या हो रहा है, करेंगे क्या? दैट इज द पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग प्रोसेस. वी आर नॉट हियर डूइंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज इफ यू मैंने स्क्रीन एनीथिंग ना, मतलब आप अगर छन्नी से अगर छनोगे किसी चीज़ को, तो बुराई जो है वो तो बाहर ही निकल जाए. आपको बुराई भी देखना है, अच्छाई भी देखना है, बुराई से भी सीखना है और अच्छाई से भी सीखना है. दैट इज द मेन मैंने थिंग हियर, मोटिव हियर. तो दिस इज व्हाई वी डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ स्क्रीनिंग. नेगेटिव, पॉजिटिव, एलिमिनेटिव कुछ भी नहीं करते, एटलीस्ट इन द ट्रेनिंग पार्ट. हाँ, इन्वेस्टमेंट में डेफिनेटली वी डू अ लॉट ऑफ स्क्रीनिंग. हियर इन दिस ट्रेनिंग नथिंग, नो स्क्रीनिंग शुड बी देयर. ये ओनली बेस्ट का ही इन्वेस्ट करेंगे तो भाई बेस्ट में ही रिसर्च करते हैं. नेवर. इफ यू जस्ट बी कंसर्न अबाउट बेस्ट, वर्स्ट में क्या होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, वही आप नहीं जान पाओगे. बेस्ट केस तो ठीक है, बेस्ट है, अच्छा तो है, तो ठीक है, अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है, बट भाई ये खतरनाक है. दिस इज द रेड फ्लैग. इफ यू डू नॉट नो दैट, मतलब अच्छी कंपनी में भी कभी कुछ खराब हो जाएगा, जैसे कि इट हैपेंड विद जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस. You do not know Z Entertainment Enterprises. It was such a great company and the founder was so good. I had his book back in 2013. I read 2014. Yeah, 2014. I read his book called The Z Factor. So the founder's name is Dr. Subhash Chandra. He is just a class 10 qualified person, and at his career's peak, he had a fortune of almost $5 billion. वहाँ से आज I think only 800 crore rupees he has. Only 800 to probably कितना होगा, 1500 करोड़ होगा from $5 billion. मतलब एटलीस्ट उस टाइम पे if the मैंने rupee to dollar was 70, then 35,000 crores, now 1,500 crores maximum. I'm saying, सोच लीजिए. JP Group, आपका JP Associates, JP Power, it was a blue chip company. JP Associates was a blue chip company at that time, at during 2007, 8, 9, post 2010-11 this company मैंने crashed kind of a thing. Okay, but वही रेड फ्लैग अगर नहीं पहचानोगे तो नहीं होएगा ना. अच्छा, कंपनी का फ्लो कैसे होना चाहिए? देखिए, whenever you are reading about a company, so what are the things that you would like to know? First, you would like to know about the company. Then there's key highlights which will help readers to get to know about the company, like what the company does in order to earn. भाई कमाता कहाँ से है? कमाता कहाँ से है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. भाई क्या बेचता है, क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है, काम क्या करता है? भाई सॉफ्टवेयर बेचता है कि बैंकिंग सर्विस बेचता है कि लोहा बेचता है कि भाई दवाई बेचता है? बेचता क्या? दारू बेचता है? क्या बेचता है? दैट इज द मेन थिंग, राइट? अब उसी के ऊपर काम होगा ना. नाउ लेट्स से व्हेन आई सेड कि दारू बेचता है, दारू बेचता है, सुनने से कुछ लोग सोचेंगे कि भाई अरे ये कैसा टीचर आ गया, दारू दारू बोल रहा है. कोई सुन के मजा आ रहा है उसको, अरे सर ही इज थिंकिंग लाइक दैट, ही और शी. But the thing is that कि भाई when we say alcohol, the thing that comes to your mind is restrictions, government restrictions. Now new generation का craze for it, and for the older generation they are also slowly मैंने coping with it. तो ये सब ये दिमाग में आता है ना कि आपका गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा, आपका दारू के ऊपर आपका टैक्सेस बढ़ गए तो ज़्यादा क्या होगा. सो दिस इज द थिंग, राइट? व्हाट दिस कंपनी सेलिंग इन ऑर्डर टू अर्न. सिगरेट सुनते हो तो क्या होता है भाई, हेल्थ के लिए खराब है, ठीक है चलो, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भाई, बहुत टैक्सेस लगता है, बजट के टाइम पे ये प्राइस बढ़ जाता है, प्राइस के रिलेटेड बहुत इश्यूज है. ये सब दिमाग में आता है कि नहीं? तो वही तो आपका मेन बिजनेस का पॉइंट है. ये आईटीसी चल रहा क्यों नहीं है?
चल क्यों नहीं रहा आईटीसी? यही कारण है भाई, आईटीसी का कोर इज स्टिल सिगरेट, ऑल्दो इट इज माने एफएमसीजी टोबैको, एफएमसीजी बोलते हैं बट ठीक है, हाँ एफएमसीजी का पोर्टफोलियो इज ह्यूज फॉर दिस कंपनी, बट स्टिल it has still remained as a tobacco play right now. This is why this ITC company is so good, the corporate governance, everything is so good, but still क्या करें? So that is the issue ना. अच्छा, what are the key revenue sources? देखिए, what are the key revenue sources? वही अभी बोला भाई, कहाँ से कमाता है, क्या बेचता है, क्या करता क्या है, धंधा क्या है इसका. Simply understand that and put it in your report. Now key revenue drivers. अच्छा भाई, ये दारू बेचता है तो की रेवेन्यू ड्राइवर्स, एकदम सिंपली सोचो, डोंट थिंक इन अ मोरलिस्टिक वे और ऑल दोस थिंग, भाड़ में जाए वो सब कुछ, समझना है, सीखना है, राइट. दारू बेचता है कंपनी, अच्छा यूनाइटेड ब्रिवरीज दारू बेचता है, बहुत बढ़िया. तो इसका अगर नया प्रोडक्ट बाजार में आएगा तो क्या वो ज़्यादा चलेगा, वो क्या टोटल रेवेन्यू को बढ़ा पाएगा. अच्छा टैक्सेस चल रहा है अभी, तो टैक्सेस की वजह से रेवेन्यू में क्या इम्पैक्ट होता है क्या. अच्छा कौन से टाइम पे ये ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, विंटर सीजन में क्या दारू का सेल ज़्यादा होता है कि आपका समर सीजन में दारू का सेल ज़्यादा होता है. सोचिए, for each and every company what could be the revenue driver. स्टील कंपनी के लिए what could be the revenue driver. अब ये आपका ये नेशनल स्टील पॉलिसी आया है, गवर्नमेंट इज पुशिंग टुवर्ड्स कि भाई पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन वी वांट टू राइज इट फ्रॉम द लेवल ऑफ 73-75 टू 200 kgs, जो कि आपका ग्लोबल एवरेज है. 200 नहीं, 160 किलोग्राम इन इंडिया, एंड द ग्लोबल एवरेज इज अराउंड 200-210 इन दैट रेंज पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन. तो till 2030 Indian government wants to take up it to 160. So that is the main key revenue driver ना. Although it, now then the thing will come in your mind कि भाई cyclicality है कि नहीं, या फिर आपका वही जो बोला आपका QGLP, यहाँ पे भी QGLP लगा दो, क्या होगा, क्वालिटी. हाँ ठीक है, दारू का क्वालिटी अच्छा है, देसी दारू तो नहीं बेचता, इंग्लिश ही बेचता है, ठीक ठाक ही बेचता है, चलो क्वालिटी हो गया. ग्रोथ का अगर सिक्लिकल कंपनी है, अगर स्टील कंपनी सिक्लिकल कंपनी है तो प्राइसिंग के चलते ये आपका क्या बोलते हैं मार्जिन में हिट करेगा. तो कब साइकिल के किस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी पीक पर है, अभी करना चाहिए कि नहीं, अभी पीक पे करना उतना ठीक नहीं रहता, उतना सेफ नहीं रहता है. बट जब बॉटम में था कोविड के टाइम पे, तब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया था तो तब क्या रिटर्न बनता. हमारे जो फाउंडर है ही इन्वेस्टेड इन जिंदाल स्टील एंड पावर व्हेन इट वाज एट 60 रुपीज़. आज कितना प्राइस है देख लीजिए, ही सोल्ड इट एट अराउंड 480 आई थिंक, मतलब बहुत पहले इन मार्च ही सोल्ड इट. कितना रिटर्न बना खुद देख लीजिए. सो दैट इज द थिंग कि रेवेन्यू ड्राइवर्स वो सब समझिए. एंड जो अभी बोला उसका भी आ रहा है, रुकिए ना, कि रेवेन्यू ड्राइवर्स मतलब ये बिजनेस का लेट्स से 100 करोड़ का रेवेन्यू है, तो ये कहाँ से ड्राइव करेगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस से ज़्यादा मार्केट शेयर ग्रैब करके, कहाँ से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ से ये बिल्ड कर रहा है, राइट. तो नाउ कॉम्पोनेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग अदर इनकम, मतलब आप टोटल कंपनी का टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हो कि 100 करोड़ का है, इसमें आपका अदर इनकम का पोर्शन कितना है, कोर इनकम का पोर्शन कितना है, उसको समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए. भाई इसका अदर इनकम का कितना आपका रेवेन्यू, अदर इनकम कितना ड्राइव होगा एंड आपका कोर इनकम कितना ड्राइव होगा, दोनों को ही समझना पड़ेगा. अदर इनकम है बट वो इनकम तो है, दैट इज द थिंग. अच्छा स्प्लिट ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू लाइक जियोग्राफी वाइज आपका मिडिल ईस्ट से कितना आता है, यूरोपियन यूनियन से कितना आ रहा है, आपके यूरोप साइड से आपका यूएस से कितना आ रहा है, आप चाइना को कुछ सेल कर रहे हो कि नहीं, आप अफ्रीकन कंट्री से कितना कर रहे हो, आप डोमेस्टिकली इंडिया में कितना सेल कर रहे हो. दैट इज द जियोग्राफी वाइज आपका रेवेन्यू का स्प्लिट, उसका एनालिसिस. प्लस प्रोडक्ट वाइज, लेट्स से प्रोडक्ट वाइज में क्या बोले, प्रोडक्ट में लेट्स से टाटा मोटर्स का क्या क्या प्रोडक्ट है. टाटा मोटर्स इज मैंने हॉट केक, बताइए टाटा मोटर्स का क्या प्रोडक्ट है अभी मार्केट में, बोलिए. टाटा मोटर्स का क्या बेचता है, टाटा मोटर क्या ट्रक्स बेचता है. तो ये आपका हैवी कमर्शियल व्हीकल हो गया. अच्छा छोटा ट्रक बेचता है, मिनी ट्रक अगर बेचता है तो वो आपका हैवी नहीं होगा, फिर वो आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल हो जाएगा, राइट. अब पैसेंजर व्हीकल में आते हैं. पैसेंजर व्हीकल मतलब जिसमें पैसेंजर जा सकते हैं. बस है टाटा मार्को पोलो बोल के आपने एक बस देखा है, जो कि अभी मतलब थोड़ा मॉडर्न इंडिया में मिल रहा है, वो बस थोड़ा दिखने में अच्छा है, राइट. टाटा मार्को पोलो वो है, उसका मैंने जे भी क्या है वो मैंने चेक नहीं किया है, बट हाँ वो तो है. तो आपका क्या मेन प्रोडक्ट वाइज क्या स्प्लिट हो रहा है, आपका लाइट कमर्शियल व्हीकल हो रहा है, आपका हैवी हो रहा है, राइट. फिर आपका क्या हो रहा है, आपका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आ रहा है, पैसेंजर व्हीकल में आपका बस हो रहा है, राइट. पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में फिर आपका टाटा मैजिक बोल के एक चीज़ होता है, आपने सुना टाटा मैजिक,
यस सर। अच्छा, एसयूवी सेगमेंट पहले टाटा सुमो था, अभी तो वो नहीं है, बट टाटा का वैसा ही कुछ मतलब ह्यूज जो एसयूवी साइड सेगमेंट है उसमें भी उन लोगों का तो कुछ ना कुछ कार है, राइट? यस सर, हैरियर। हरियर है, वेरी गुड। फिर आपका क्या बोलते हैं पैसेंजर व्हीकल में आपका फोर व्हीलर्स मतलब छोटा में कुछ है, जैसे कि आपका पहले टाटा इंडिका वैसा कुछ था, अभी क्या चल रहा है टाटा में? अभी कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है? नेक्सॉन। चलिए, फिर आपका टाटा में अभी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काम चल रहा है, वो एक सेगमेंट हो गया। अच्छा, फिर और टाटा मोटर्स और क्या बेचता है? जैगुआर लैंड रोवर है, राइट? तो ये प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट हो गया। एंड टाटा मोटर का अगर आप देखोगे तो आपका जियोग्राफिकल वाइज स्प्लिट में कि यूरोप में कितना आपका जेलर बिक रहा है, फिर आपका चाइना में कितना बिक रहा है। इन 2018-2019 उस टाइम पे इन लोगों का इतना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक्सपोजर था नहीं। R&Ds डेफिनेटली हो रहे थे, बट हाँ एक्सपोजर था नहीं। बट उस टाइम पे फिर ये टाटा मोटर्स क्यों गिरा? ऑलमोस्ट इट वाज मैंने फ्रॉम द लेवल ऑफ आई थिंक 600 इट हैज करेक्टेड टिल 300 देन 200 देन even lower it went, मतलब post pre-COVID I'm saying it was trading around 190 I think, and 190 or something like that. So I actually invested at 210 and I was so foolish कि I sold it off at 120 during मैंने just little before COVID or around COVID at that time. I was so foolish. बट हाँ ठीक है, चलो 200 से तो ये तो देखेंगे तो अभी 400-500 ही है, ठीक है, मेरा रिटर्न कहीं और बना, बट हाँ ठीक है, गलती तो है। तो इतना कुछ है। अब जियोग्राफिकल वाइज स्प्लिट का एनालिसिस क्यों करना है? उस टाइम पे शेयर गिरा क्यों था? चाइना में सेल कम हो रहा था उस टाइम पे चाइना पे बहुत मार खा रहा था ये कंपनी जेलर सेगमेंट। तो कॉन्सल बेसिस पर जेलर अगर मार खा रहा है तो ये टोटल कंपनी का कहाँ से ग्रोथ होएगा? तो इसीलिए आपका जियोग्राफिकल वाइज आपका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे कि बस का सेगमेंट लेते हैं, बस का सेगमेंट में हु इज द लीडर, हु इज लीडिंग? ट्रक का सेगमेंट में हु इज लीडिंग? टाटा मोटर्स इज डूइंग वेरी गुड, बट महिंद्रा इज ऑल्सो मैंने आई थिंक महिंद्रा मतलब इतना इनोवेशन कर रहा है ना ट्रक के सेगमेंट में, इज टू गुड। आप रास्तों में अभी इस टाइम पे करंटली नए अगर ट्रक्स देखते हो, टाटा मोटर्स के कितने नए ट्रक्स देखते हो? ये पुराने मॉडल को आप छोड़ दो, पुराना वाला मॉडल आप छोड़ दो, पुराना जो एकदम था ह्यूज साइज ट्रक, उसमें तो वो राजा था उस टाइम पे। अभी नए मॉडल्स देखते हो तो किसके ट्रक ज़्यादा देखते हो? मैंने तो महिंद्रा के कोलकाता साइड में मतलब वेस्ट बंगाल साइड में मैंने महिंद्रा के बहुत सारे देखे हैं। जनरली वर्ल्ड ट्रक्स आर अवेलेबल ऑन द स्ट्रीट, उसका तो टाटा का ही है, बट आइशर एंड महिंद्रा का मैं नया नया कुछ ट्रक्स में देख रहा हूँ रोड पर। व्हाट यू गाइस सी? आप लोग क्या देखते हो रोड पर ज़्यादा? बोलो बोलो बोलो। आइकर महिंद्रा दोनों, टाटा भी थोड़ा बहुत है। महिंद्रा थोड़ा देखते हो आप, और बाकी लोग? आइकर भी। अच्छा, ये टाटा आपने बोला, हरियर है, ये सब है। अच्छा आप बोलो एसयूवी में कौन सा आप ज़्यादा देखते हो? एसयूवी में कौन सा ज़्यादा आप लोगों को दिखने को मिलता है? स्कॉर्पियो? दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट। चलिए, split of revenue, operating revenue like geography wise, then product wise. Key revenue drivers product wise I have said strong brand presence. अगर कोई ब्रांड उन लोगों का मतलब स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश ब्रांड है, जैसे कि आपका एंटरप्राइज सेगमेंट में आपका जॉकी का है, देन आपका डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, वैसा कुछ अगर आपका स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, सो दैट ऑल्सो यू प्लीज इंक्लूड इन योर रिपोर्ट। योर USP, योर कंपनीज USP, व्हाट इज द USP ऑफ दिस कंपनी? अच्छा, प्रोडक्ट और ब्रांड रिकॉल वैल्यू एप्पल का जैसे कि है। द न्यू स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव टॉप लाइन को इम्प्रूव करने में क्या नया स्ट्रेटेजी दे रहे हैं? तो समवन जस्ट वाज टॉकिंग अबाउट जोमेटो। तो जोमेटो क्या कर रहे हैं? दे आर कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन द टॉप लाइन ग्रोथ राइट नाउ। बॉटम लाइन का दे आर नॉट रियली दैट मच कंसर्न्ड अबाउट इट, दैट इज द थिंग। अच्छा, देन या इम्प्रूव टॉप लाइन, देन प्राइसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसका यहाँ पे इज correlated with this point, so I will be explaining it just later on, but हाँ थोड़ा सा प्रोडक्ट एंड सर्विस का प्राइसिंग। तो अभी आपका ओलिगोपोली मार्केट अगर है, वहाँ पे कोई एग्जांपल दीजिए ओलिगोपोली मार्केट का। एनी एग्जांपल ऑफ एनी ओलिगोपोली मार्केट करंटली हु आर राइजिंग देयर प्राइस? मोबाइल फोन कंपनी, स्मार्टफोन कंपनीज, चलिए, एंड टेलीकॉम कंपनीज, स्टील कंपनीज कर रहे हैं प्राइस हाइक, एटलीस्ट टेलीकॉम कंपनीज
एटलीस्ट टेलीकॉम कंपनीज क्या कर रहे हैं क्या? Yes, sir. बहुत एकदम मैंने आप विजिबल हो गया, आप क्या देख रहे हैं कि ये वोडाफोन का सब जियो एयरटेल सब का टैरिफ आप ये लोग हाइक कर रहे हैं, राइट? तो दिस इज द प्राइसिंग थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि प्राइसिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस। इससे क्या होता है कि जिस लेट्स से टेलीकॉम में आपका ये जो वोडाफोन का ARPU है, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ये इन लोगों का जो फिक्स्ड कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये माइनस करने के बाद आपका जो रहेगा नेट जो इनकम रह रहा है आपका प्रॉफिट का, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो बाकी सर्विसेज देने के बाद। तो ये एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो है, ये अगर प्राइस इंक्रीज करेगा, अगर टैरिफ हाइक करेगा, तो आपका ये ARPU ये इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वोडाफोन का है आई थिंक अराउंड 110, जियो का है ऑलमोस्ट कितना था 149 के आसपास आई थिंक था लास्ट क्वार्टर में। एयरटेल का भी वैसा था आपका ऑलमोस्ट 151 या वैसा ही था, 150 वैसा कुछ था एयरटेल का। तो प्राइस हाइक करने से इन लोगों को फायदा मिल रहा है ना। तो प्रोडक्ट हाइक आपका प्रोडक्ट के प्राइस हाइक का क्या इम्पैक्ट हो सकता है टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन पर, वो भी आप लोग वहाँ पे एक्सप्लेन कीजिएगा। R&D कितना कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंड कितना हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या चल रहा है, दैट इज ऑल द थिंग्स विल बी इन MDA। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या आपको कहाँ से रीड करने हैं। अच्छा, मार्केट शेयर इज मैंने डैम इंपॉर्टेंट। मार्केट शेयर ग्रोथ कितना हो रहा है, मार्केट शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल कितना है कंपनी का, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का मार्केट शेयर कितना है। टाटा स्टील का मार्केट शेयर है स्टील में इंडिया में 30%, JSW स्टील का है आपका 23%, एंड द मार्केट शेयर ग्रोथ। अच्छा, टाटा स्टील इज इन ऑपरेशन सिंस 1907, JSW स्टील माने आफ्टर द डेथ ऑफ ओम प्रकाश जिंदल, या ओम प्रकाश जिंदल वाज द फादर ऑफ दिस पर्सन सज्जन जिंदल एंड नवीन जिंदल। तो भाई या तो ओम प्रकाश जिंदल वाज द फादर ऑफ सज्जन जिंदल एंड नवीन जिंदल। तो भाई उनके डेथ के बाद देन दिस JSW स्टील and J Steel was one company, then it was split हो गया, then JSW Steel from almost like zero level, now they are producing around 20 million tons of steel roughly। तो भाई इतना प्रोडक्शन कर रहा है and Tata Steel is still at 30 million tons। बात को देखिए, तो इसका मार्केट शेयर ग्रोथ कितनी एक्सपोनेंशियली हुआ है। टाटा स्टील एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज द ओनली डोमिनेटिंग प्लेयर्स एट दैट टाइम, मैंने सिंस इतने टाइम से। एंड आपका JSW स्टील आया, उसने 23% मार्केट शेयर गेन कर लिया, एंड एट दैट टाइम देयर वर ओनली टू प्लेयर्स, टाटा स्टील एंड आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड ऑलमोस्ट दे हैड लाइक अराउंड 60-40 काइंड ऑफ मार्केट शेयर। तो ये मार्केट शेयर लूज किसने किया? स्टील अथॉरिटी ने मार्केट शेयर लूज किया, गेन किसने किया? JSW स्टील ने गेन किया। सो दिस इज द मार्केट शेयर ग्रोथ आई एम सेइंग। तो अगर कोई मार्केट शेयर लूजिंग कंपनी है, वहाँ पे इन्वेस्ट करोगे कि मार्केट शेयर गेनिंग कंपनी में? डेफिनेटली मार्केट शेयर गेनिंग कंपनी। अच्छा, एनी ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, कि ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी क्या चीज़ है? समवन वाज आस्किंग अबाउट दिस ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी मतलब कि इफ इट इज अ माने परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट और अ सुपर हाईली कम्पिटिटिव मार्केट ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब कट थ्रोट कंपटीशन चलता है। मतलब वहाँ पे आप प्राइस हाइक करोगे तब भी मरोगे, आप वहाँ पे प्राइस डिस्काउंट दोगे उसमें आपका खुद का मार्जिन जाएगा, वहाँ पे भी आपका सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो इधर यू गेन द मार्केट शेयर, तो उसमें आपका आपका प्रॉफिटेबिलिटी लूज होगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन देयर कि भाई ज़्यादा डिस्काउंट भी इसलिए आप नहीं दे पाओगे। मतलब वहाँ पे आपको स्टेबल प्राइस भी रखना है एंड आपका कॉस्ट भी पूरा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही फिक्स्ड है। दैट इज द परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, राइट। बट उस मार्केट से निकल के ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट एंड सर्विस सभी लोग बेच रहे हैं, बट उसमें आप कुछ हटके अगर करते हो जहाँ से यू स्टैंड आउट, देन दैट बिकम्स योर ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। उसका सिंपल एग्जाम्पल देखिए, पहले टेलीकॉम वॉज ऑलमोस्ट लाइक परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट, सभी लोगों का टैरिफ ऑलमोस्ट सेम था। एयरसेल दैट कंपनी वाज सेलिंग देयर सर्विसेज माने एट लीस्ट चीप प्राइस, बट दे वर टेकिंग हिट ऑन मार्जिन। दिस रिलायंस कम्युनिकेशन तो छोड़िए, वो तो भागने जाए, उसका तो खत्म हो गया। आई नो रिलायंस कम्युनिकेशन मतलब क्वाइट क्लोजली एक्चुअली। आई मैंने व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो देयर आई यूज्ड टू वर्क ऑलमोस्ट लाइक आई हैव वर्क ऑन कितना था 5 मंथ्स मैंने काम भी किया था रिलायंस कम्युनिकेशन में कॉलेज के डेज में, बैक इन 2015 10th of November was my joining date over there, मैंने ऑन द डे ऑफ काली पूजा आई जॉइंड दैट कंपनी देयर। तो वही मजे में ज्वाइन किया, काम किया, बट द कंपनी उस टाइम पे भी इंटरनली वॉज मैंने सो ऑफुल, एंड बाद में तो ख़त्म ही हो गया, छोड़ दीजिए।
तो दिस इज द थिंग, आपका परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट के जैसा ही था टेलीकॉम, बट जियो केम, व्हाट दे डिड, सभी लोग एट द टाइम एक्चुअली बने, दिस कंपनीज वर confused between whether they should use the CDMA technology or GSM technology. Most of the players understood कि no, GSM is the next future, GSM में ही होगा, CDMA में कुछ नहीं होने वाला है, फेंक दो उठा के. But still this Reliance Communication, they were still stuck with that, so they were not doing R&D. R&D में उन लोगों का उतना था ही नहीं, भाई जाओ वही फालतू कुछ स्कीम्स लाएंगे, पोस्टपेड कनेक्शन एनरोल करवाएंगे, वही सब करेंगे, पोस्टपेड कनेक्शन के ऊपर से मार्जिन कमा के निकल जाएंगे. सभी वही कर रहे थे कि भाई प्रीपेड नॉर्मल सर्विस चाहिए, प्रीपेड अच्छा चाहिए भाई, पोस्टपेड ले लो, और कोई ऑप्शन ही नहीं था. ऊपर से उल्टा सीधा टैरिफ, एंड स्टिल आपका मार्केट में हाई कंपटीशन. जियो आया, बोला भाई तू सब लोग साइड हट, मेरे को काम करना है, मैं 2G में देखूंगा नहीं, 3G में देखूंगा नहीं. हाँ, अभी जियो का सर्विस चाहे जितना भी गंदा हो या हाँ रीजनल बेसिस पे कहीं पे घटिया होता है, कहीं पे अच्छा होता है, जहाँ जिसका कवरेज अच्छा है, इट इज़ लाइक दैट. मेरे कोलकाता में और यहाँ जब अभी मैं जहाँ से काम कर रहा हूँ, साउथ 24 परगना से, यहाँ पे करंटली फॉर लास्ट फ्यू मंथ वोडाफोन इज मैंने एक्सेलेंट, एंड मैंने वोडाफोन इज द ओनली प्रोवाइडर मैंने जो कि थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है. अदरवाइज आप तो जानते हो कि मेरा इंटरनेट का क्या इशूज़ चलता है कभी कभार, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत घटिया है. एनीवेज, वोडाफोन इज प्रोवाइडिंग गुड सर्विस फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, बट अर्लियर इट वॉज जियो, अर्लियर एयरटेल, लाइक दैट. तो भाई वो बोले कि भाई मेरे को 2G में इन्वेस्ट करना नहीं है, 3G में कतई नहीं करूँगा भाई, डायरेक्ट 4G में पैसा ठोकते हैं, 3.5 लाख करोड़ का कैपेक्स किया, सब कुछ एकदम तहस कर दिया, 1 साल सब फ्री, चलो आ जाओ, 0 से 30%, 35% मार्केट शेयर. दिस इज द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जहाँ पे आप डायरेक्ट कंपटीशन में हेड ऑन जाएंगे ही नहीं, आप डायरेक्ट ऐसा कुछ करेंगे एकदम मार्केट खत्म. मैंने इट इज लाइक कि इफ यू आर द मैंने बेस्ट, यू आर नंबर 1. दिस इज वन कोट कॉल्ड इफ यू आर बेस्ट यू आर नंबर 1, बट इफ यू आर यूनिक यू आर ओनली 1. तो वो वैसा ही उस टाइम पे कर दिया था. उस टाइम पे दिस एयरटेल वाज इन ड्यूरिंग 2015, आई वाज इन टेलीकॉम, सो आई वाज मैंने वाचिंग दिस क्लोजली. योर एयरटेल केम अप विथ समथिंग कॉल्ड प्लैटिनम 3G, which they were मैंने इट वाज नॉट कि कम्प्लीटली 4G, बट हाँ थोड़ा स्पीड बेहतर मिलता था. प्लैटिनम 3G बोल के कुछ चला था ये लोग उस टाइम पे. जियो आए, बोले भाई प्लैटिनम क्या, मैं गोल्ड एकदम 4G दे देता हूँ, चलो काम करो. एंड वी बिकेम एडिक्टेड टू द प्रोडक्ट, एंड वी नीडेड ओनली 4G. उसके बाद पूरा मार्केट ही शिफ्ट हो गया. क्या करें, दिस इज द ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी. अभी बाकियों का ऐसा एग्जाम्पल किसके दिमाग में आ रहा है क्या, ब्लू ओशन का, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का कोई एग्जाम्पल किसी के माइंड में? दिस इज द वन वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल. सोचिए. Any blue ocean strategy? हेलो सो गए सब? गाना ठीक है. और सर उबर चलिए नेटफ्लिक्स चलिए वेरी गुड. और क्या होटल्स में मेक माई ट्रिप वगैरह ने किया है नहीं क्या, ट्रैवलिंग में? हाँ, बट उसमें ओयो आके क्या कर दिया? दोनों मतलब ओयो भी है ना उसमें? हाँ है तो डेफिनेटली है, बट वो जब आया ना, आपका एग्जाम्पल सही है, उस टाइम पे MMT ने किया था, एकदम करेक्ट. MMT वाज मैंने फास्ट मूव, आई थिंक इट वाज फाउंडेड इन बैक इन 2001 और 2 आई थिंक, राइट? यस. MMT उस टाइम पे का था है ना, तो वहाँ से ये डिड मैंने फिनोमिनल जॉब, एंड एट दैट टाइम इट वाज देयर ओन मैंने क्या बोलते हैं ब्लू ओशन. ये उस टाइम पे उन लोगों का ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी था, बट बाद में वो केम सो लेटर, एंड सी व्हाट इट हैज डन. ये मतलब वही आपका ट्रेडिशनल होटल बुकिंग का नहीं गया कि भाई आपका ये इस होटल में ले लो, उस होटल में ले लो, वैसा नहीं. ये खुद ही लोगों का आपका प्रॉपर्टी बना के बेच दिए. हाँ एप्पल भी बोल सकते हो, हाँ एप्पल चलेगा, व्हाई नॉट. सर व्हीकल सेक्टर में मारुति सुजुकी, टेस्ला भी देखिए, कहाँ लोग ट्रेडिशनल कार्स में जा रहे थे, ये एकदम आके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लाके ठोक दिया, देखिए आज कहाँ चला गया. हाँ चलिए बोलिए मारुति सुजुकी. हाँ तो मतलब स्टार्टिंग में मतलब व्हीकल सेक्टर में मारुति सुजुकी ने 4 व्हीलर मार्केट में पूरा कैप्चर किया था. एक्चुअली आपका सोच ठीक है,
गलत नहीं है। तो उस टाइम पे था हिंदुस्तान मोटर्स बोल के एक था, जिसका कोलकाता में अभी भी कार्स अवेलेबल है। वो टैक्सीज बोल के एक चीज़, मतलब वो टैक्सी है ना, पता नहीं आप कहाँ से हो या वहाँ पे कैसे टैक्सी सर्विसेज अवेलेबल होते हैं। तो इफ़ यू जस्ट सर्च ऑन गूगल कि भाई कोलकाता टैक्सी, आई एम नॉट सीइंग एनी बंगाली फ्रॉम हियर, ओके, कोलकाता टैक्सी बोल के सर्च करोगे तो येलो कलर का यू विल मैंने फाइंड दिस एम्बेसडर कार, ओके, स्टिल इट रन्स ऑन मैंने कोलकाता स्ट्रीट, ओके। तो उन्हीं लोगों का सब कुछ था, उन्हीं लोगों का बिजनेस था। तो बाकी का क्या हुआ कि ये आपका फर्स्ट मूवर, मतलब पहले चलने वाला था। तो ये तो आपका गवर्नमेंट के साथ ये किया, आपका क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन किया। फिर आपका क्या बोलती है, मारुति एंड सुजुकी, अभी तो क्या कुछ नया न्यूज़ आ रहा है आई थिंक सुजुकी से रिलेटेड कि ईवी का कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा बाय 2026, राइट, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। मैं ईवी ट्रैक नहीं करता हूँ उतना, वैसा कुछ न्यूज़ सुना है, आजकल ही सुन रहा था मैं। यस सर, वैसा कुछ सुन रहा था मैं। तो मारुति का ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी नहीं है, बट हाँ फर्स्ट मूवर तो है, ग्रेट कंपनी है भाई। सर मतलब अमेजोन भी है ना एक ऑनलाइन शॉपिंग में, वो ब्लू ओशन कुछ एरियाज में शायद बोल पाओगे, क्योंकि उन लोगों का जो है आपका डिलीवरी सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उस लिहाज से देखोगे तो हाँ, उस लिहाज से देखेंगे तो हाँ पार्शियली ब्लू ओशन तो है उन लोगों का। देखिए ये आपका नहीं मतलब, जी बोलिए। नहीं मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि इससे पहले तक तो किसी को तो पता नहीं था, पर अभी सबके मतलब जुबान पे नाम है अमेजोन का, कि उतना उन्होंने मार्केट कवर कर लिया है। हाँ वो एक तरीके से है, बट वो दैट इज द मैंने 5-6 साल पहले तो इतना नहीं था ना, दैट तो जब से उन्होंने इंडिया में एंट्री की तो उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर इफ किया यू आर है। द बेस्ट, यू आर नंबर 1, अमेजोन का है भाई, वो नंबर 1 है, उसको कौन गिराएगा अभी। बट मैं पता नहीं, मैं लिंक्डइन पर आज या कल देख रहा था कि आज आई थिंक मॉर्निंग में मैं देख रहा था, पता नहीं ही सेड इट और नॉट, कि बोले कि भाई अरे अमेजोन को लेकर कितना उछल कूद कर रहे हो भाई, एक दिन अमेजोन भी नहीं रहेगा, वो भी तो खत्म हो जाएगा, एक दिन बैंकरप्ट हो जाएगा, सेल कर देंगे। लिंक्डइन पर ये देखा, पता नहीं सच है कि झूठ है। तो एक्चुअली मतलब वो पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि भाई इतने इनसाइटफुल बात इसने बोल दिया शायद है जी, हाँ शायद। तो यही है आपका, ठीक है। अच्छा चलिए अच्छा, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी का थोड़ा आई थिंक अभी क्लैरिफिकेशन यू गाइस हैव गॉट इट। अच्छा इंटीग्रेशन, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, ये बात समझिए, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है ना, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है। इफ देयर एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस टू टर्म्स, आई थिंक आई हैव शेयर्ड दिस की टर्म इन योर WhatsApp messages also, right? Saurabh forwarded 90+ links, so probably this was there, horizontal integration versus vertical integration. Is there anyone who can explain? Anyone, any idea, any guess? Guess कीजिए same business So and vertical, जी बोलिए। so horizontal means within the same business वो लोग expand कर रहे हैं, like medicine to medicine, like if they are e-commerce medicine business, then acquiring other e-commerce medicine business which has reach in another market. And vertical might be like they are within that same business, like manufactured paper industry वगैरह हो. So if they are acquiring like notebook industry, तो paper raw material वाला कोई कंपनी हो. हाँ ठीक, तो वर्टिकल मतलब है कि भाई आप आगे पीछे एक्सपेंड कर रहे हो। आगे पीछे मतलब कि लेट्स से यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो आप रॉ मटेरियल साइड पे भी जा रहे हो एंड आप फिनिश्ड प्रोडक्ट के साइड पे भी जा रहे हो, मतलब फिनिश्ड एकदम सेलिंग तक जा रहे हो। मतलब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज राजेश एक्सपोर्ट्स। हैव यू गाइस हर्ड अबाउट दिस कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स? सॉलिड कंपनी है, इतना रिटर्न नहीं बन रहा है, बट मैंने इफ यू go and check from the inception what the return this company has generated, you will be shocked. This company तो मतलब भयंकर स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उनका टर्नओवर जाके एक बार चेक कीजिएगा आज, व्हाट इज द टोटल मैंने टॉप लाइन, उधर ही चक्कर आपका माथा घूम जाएगा, एकदम चक्कर आ जाएगा। टॉप लाइन जस्ट देखिए, प्रॉफिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जैक्टली गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये राजेश एक्सपोर्ट का है कि भाई पहले ये आपका वही जो था गुजराती
का जो जैसा आपका एक बिजनेस स्टाइल है कि भाई वही आपका डायमंड वगैरह सब पॉलिश करता था, तो वो वही सब काम था, छोटा सा शॉप चालू किया। तो अल्टीमेटली क्या किया भाई, जो मतलब ज्वेलर्स का जो काम वही करता था कि भाई गोल्ड कहीं से लिया, लेके डिज़ाइंस करके सब कुछ करके बेचा, वैसा ही था। वहाँ से बढ़ाते बढ़ाते देन व्हाट दे डिड इज कि आपका मतलब पहले डिज़ाइनिंग का था, आई थिंक पहले डिज़ाइनिंग का था, सिर्फ गोल्ड ज्वेलरीज डिज़ाइन करता था। एंड देन सेनको ज्वेलर्स, देन पीसी चंद्रा, वैसे पीसी चंद्रा नहीं, पीसी चंद्रा में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़िए। टाइटन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि TVZ लेते हैं, फिर आपका ये क्या था, छोड़िए नाम याद नहीं है। अच्छा, वैसे ही आपका जैसे ज्वेलर्स होता है आपका, तो TVZ ही लेते हैं, TVZ बहुत लोग जानते हैं, या फिर टाइटन लेते हैं। तो उन लोगों को लेट से बेचता था, ठीक है, डिज़ाइन करके देता था कि भाई मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, या फिर आपकी नया डिज़ाइन, कुछ नया डिज़ाइन करो, तो वो डिज़ाइन करके बेचता था, कंपनीज को दे देता था। उससे वो मेनली डिज़ाइनिंग में था, मैन्युफैक्चरिंग में था वो। उससे उसने क्या किया भाई, वो आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन में उसने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब वो खुद से अपने स्टोर्स भी खोलने लगे। उसका था डिज़ाइनिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, उसने किया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। वो आगे जाके इंटीग्रेट किया, कैसे, खुद का दुकान खोल लिया, बहुत सारे दुकान खोले, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग भी बढ़ा और उसका खुद का दुकान भी बढ़ा, रिटेल शॉप्स भी बढ़ा। अब इसने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, कैसे, ये गोल्ड माइनिंग में भी चला गया, गोल्ड एक्सट्रैक्शन में भी चला गया, इसमें चला गया। तो मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में जब आप आगे और पीछे दोनों तरफ ही, आप आगे जाके माल को बेचते भी हो, पीछे जाके आप माल को जुगाड़ भी करते हो, प्रोक्योर भी करते हो, दैट इज योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। दैट इज योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में क्या, आपका एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था, वहाँ से अपने वेरियस प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज आप लाने लगे। लेट्स से कि ITC का सिगरेट बिजनेस था, तो पहले विल्स बोल के आता था, तब उससे फ्लेग भी आया, गोल्ड फ्लेग भी आया। फिर आपका वो क्या था, प्लेयर्स बोल के एक बीच में लॉन्च किया था। फिर आपका गोल्ड फ्लेग का कुछ महंगा वाला जो होता है सिगरेट होता है, वो सब किया। अच्छा, अल्कोहल में देखिए आपका क्या है, यूनाइटेड ब्रिवरीज में उसका क्या ब्रांड है, आपका मैकडोल्स था। उसके साथ साथ आपका ये भी अभी बहुत सारे जो भी आपके ब्रांड्स है, आई थिंक रॉयल स्टैग भी उन लोगों का है। वैसा करके आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। जैसे कि आपके HUL का है, सनलाइट है, सर्फ एक्सेल है, दोनों एक दूसरे के कंपीटर है, बट है एक ही कंपनी का माल। तो वैसा ही है आपका कि हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सो दिस इज द थिंग। अगर वैसा है आप रिपोर्ट में उसको इंक्लूड कीजिए। अच्छा, रिलेशन विथ बायर्स, हॉरिजॉन्टल एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। चलिए, रिलेशन विथ बायर्स, इसको कैसे समझे, रिलेशन विथ बायर्स। देन डेटर्स टर्नओवर लिखा है, इसको समझाइए तो थोड़ा, क्यों लिखा है, समझिए एंड समझाइए मुझे। गेस कीजिए थोड़ा सा। चलिए, उतना गेस करने का भी टाइम नहीं है। चलिए, रिलेशन विद बायर्स इज दैट कि लेट्स से आप अपने प्रोडक्ट को किसी को ऑन क्रेडिट बेचते हो, उधारी में आपको बेचना पड़ता है, ठीक है। तो उससे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, आपके बैलेंस शीट में जाके ट्रेड रिसीवेबल बोल के एक चीज़ जनरेट होता है, राइट। ट्रेड रिसीवेबल बोल के एक चीज़ जनरेट होता है, उसी का एनालिसिस यहाँ पे बोला जा रहा है। दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल्स। मतलब सेल क्या होता है, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल, दोनों टाइप के सेल होते हैं। अब उसमें रिलेशनशिप विथ बायर्स इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब यहाँ पे इंक्लूड किया है क्योंकि आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है उसका क्या कंडीशन है, क्योंकि वहीं पे आपका बैड डेट भी हो सकता है, वहीं पे आपका डेटर्स मतलब आपका वर्किंग कैपिटल वहाँ पे लॉक हो सकता है, राइट। आपने माल बनाए हैं, आपने बेच दिए है और आपको पैसे नहीं मिले, तो आपका तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट तब हाई हो जाएगा। तब वर्किंग कैपिटल को रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करने के लिए आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल के लिए आप छोटे मोटे आप लोन्स लोगे, वर्किंग कैपिटल लोन लोगे, बिजनेस लोन लोगे। तो उससे क्या होगा, उससे आपको फिर से मार्जिन में इम्पैक्ट होगा। दिस इज वाई आई हैव सेड दिस थिंग हियर कि बायर के साथ रिलेशन डेटर टर्नओवर रेशियो जो है उसको समझिए। अच्छा, रिसीवेबल डेज उसको समझिए एंड इन्वेंट्री टर्नओवर इसको भी समझिए, ठीक है। इसको इंक्लूड कीजिए। अब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस 3 थिंग्स हियर इन दिस सेशन। वाई, इसके लिए अलग से जब रेशियो एनालिसिस का क्लास होगा, यूट्यूब पर अपलोड होगा, तब ये सब कुछ आपको वहाँ पे एकदम A to Z समझाया जाएगा। अभी अगर समझ में नहीं आता है, एटलीस्ट गूगल कीजिए, बेसिक जानकारी मिल जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला रट्टा मत मारिए, थोड़ा खुद से सोचिए, सोच के जो भी रीड करेंगे उसके साथ इंटीग्रेट करके फिर आप रिपोर्ट में डालिए उसको। इसको एकदम अच्छे से समझाया जाएगा आपको आगे जाके। अच्छा,
ये सब इंक्लूड करने के बाद मार्केट टाइप क्या है, ओलिगोपोली, मोनोपोली, डुओपोली क्या है देखिए। अच्छा, मार्केट टाइप, स्ट्रक्चर, अच्छा कंपटीशन इन द मार्केट, वही सेम चीज़। अच्छा, की थ्रेट्स टू द कंपनी। अब ये की थ्रेट्स टू द कंपनी, एक कंपनी के लिए थ्रेट पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सब मिला के क्या क्या हो सकते हैं, कुछ एग्जांपल दीजिए की थ्रेट्स टू कंपनी का। गवर्नमेंट पॉलिसी। करेक्ट। अच्छा हाँ, आपने अच्छा कहा की थ्रेट्स टू कंपनी कमा, थ्रेट का ऑपोजिट क्या होता है, चलिए मतलब थ्रेट भी दीजिए और उसका उल्टा भी दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, की थ्रेट्स टू द कंपनी एंड हाँ हाँ अपॉर्चुनिटीज, हाँ स्ट्रेंथ सर। हाँ बोलिए बोलिए, स्ट्रेंथ ना, हाँ थ्रेट बोलिए। एविएशन कंपनीज में क्या थ्रेट हो सकता है, एविएशन कंपनीज में क्या थ्रेट हो सकता है, इंडिगो में क्या थ्रेट है, एविएशन इंडिगो में क्या थ्रेट हो सकता है, प्राइस ऑफ फ्यूल। यस करेक्ट। अच्छा, और क्या थ्रेट हो सकता है आपका, लेट्स से ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्राइस ऑफ फ्यूल, BS4 BS6 इंजन का वन थिंग हैपेंड फ्यू इयर्स बैक, 2-3 इयर्स बैक इन 2019 राइट, ट्रांजिशन फ्रॉम BS4 टू BS6 इंजन, यस मैंडेटरी कर दिया था ना उसको, तो वो हो गया आपका गवर्नमेंट के वजह से थ्रेट हुआ। अच्छा, फिर और क्या थ्रेट हो सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर। करेक्ट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसी का खुद का ही माने खुद ही का प्रोडक्ट, उसका खुद का थ्रेट है, एक ही सेक्टर का सेम प्रोडक्ट, बट कोई ब्लू ओशन स्ट्रेटजी ला दिया तो भाई वो थ्रेट हो गया आपका। करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। और सीमेंट सेक्टर का क्या हो सकता है, अच्छा डिमांड भी है, हाँ स्लो डिमांड वो भी है, थ्रेट और जानना चाहते हो आप, थ्रेट को समझा दे। चलिए, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट होगा, लोग खरीदना बंद कर देंगे, लोन नहीं ले पाएंगे, EMI ज़्यादा हो जाएगा। करेक्ट। और बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनकम कम हो जाएगी लोगों की, वो होगा नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इनकम क्यों कम होगा, अच्छा किस लिए बोल रहे हो, बोलिए आपका लॉजिक क्या है, बोलिए। तो इनकम कम होगा मतलब प्रेशर रहेगा ना उनके सैलरी पे वगैरह में, तो अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या थ्रेट हो सकते हैं, बोलिए। नहीं ठीक है, आप बोलिए, मैं भी आपका पर्सपेक्टिव जानूँ, आपसे भी सीखूँ, आप भी मेरे से सीखें, इंटरेक्ट कीजिए। बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से ठीक है, आप सोच के बोलिए ना क्या प्रॉब्लम है, बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ने से रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या प्रॉब्लम होगा, बोलिए। रियल एस्टेट सेक्टर पे क्या प्रॉब्लम होगा, क्या होगा रियल एस्टेट सेक्टर में, क्या होगा, रेंट बढ़ सकता है, अगर EMI बढ़ जाएगा, यस हाउसिंग फाइनेंस जो लोन होते हैं उसका प्रॉब्लम होगा। चलिए, और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से और कौन सा सेक्टर पकड़े, सीमेंट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम होगा, बोलिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सीमेंट सेक्टर पर क्या प्रॉब्लम होगा, ये बोलिए, 2 वाइज प्रॉब्लम होगा, सोचिए, जल्दी। साई ठाकरे राइट, सही आप बोलिए, सेबेस्टियन आप बोलिए, बाकी सब लोग बोलिए, कुछ ना कुछ सोचिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से सीमेंट सेक्टर पर क्या प्रॉब्लम होगा, प्रतीक पटेल बोलिए, प्रियांजलि चक्रवर्ती आप तो कुछ नहीं बोलती है, बोलिए, आपको जो ठीक लगे बोलिए, तालिब आप बोलिए। हाँ बोलिए। डायरेक्ट इम्पैक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि अब सीमेंट यूज करके बिल्डिंग्स बनने में काम आते हैं, इंटरेस्ट रेट तो लोग खरीदेंगे नहीं तो बनना बंद करेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, सीमेंट का धंधा भी नहीं चलेगा।
ठीक है, और एक इम्पैक्ट एकदम सही है, एक पॉइंट एकदम सही, और एक इम्पैक्ट है, मैंने बोला ना 2 वे इम्पैक्ट है, ये 1 वे और एक है, ये आपका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, अब एक डायरेक्ट इम्पैक्ट भी है। कैपेक्स करने में प्रॉब्लम होगा? यस सर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से चलिए इंटरेस्ट रेट बहुत हो गया, और कुछ सोचते हैं, और क्या सोचें? एक लेट्स से रिटेल कंपनी का क्या थ्रेट हो सकता है? डीमार्ट, उसका क्या थ्रेट हो सकता है? क्रूड ऑयल, हाँ क्रूड ऑयल का लेते हैं, रुकिए। अच्छा, डीमार्ट का जो कंपनी है, मतलब ये रिटेल कंपनीज, रिटेल चेन्स, इसका क्या क्या थ्रेट हो सकता है? सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए। वी हैव ओनली 24 मिनट्स मोर, जल्दी सोचिए, सभी लोग सोचिए। डीमार्ट एक्सपांड नहीं कर पाएगा शायद, क्योंकि आई गेस डीमार्ट एक ओनली मतलब ऐसा कंपनी जो लैंड खरीदता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंस्टेड ऑफ रेंटिंग इट आउट, एकदम ठीक है ना? नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ वो तो अच्छा ही है, उसका मतलब थ्रेट क्या है, बिजनेस का थ्रेट क्या है? डीमार्ट के भी क्या खरीद नहीं पाएंगे कि लोन नहीं ले पाएंगे, लोन का छोड़िए, लोन का छोड़िए और बाकी बोलिए एकदम सिंपल टर्म में, बहुत साधारण सोचिए। सॉलिड मार्केट शेयर में होकर, हाँ प्रतीक, ये हो सकता है, हाँ बोलिए। सर ये जो ऑनलाइन कंपनी जा रही है, जो डोर स्टेप डिलीवरी कर रही है, तो वो उनके लिए थ्रेट ही है। जैसे कि अभी मेरे को तो टाइम नहीं है, तो मैं हर समय मतलब मेरे घर से थोड़ा सा दूर है डीमार्ट, जैसे 2-4 किलोमीटर, तो हर समय मैं वहां पे जाके इतना टाइम के शॉपिंग कर सकूं। उससे अच्छा अगर कोई स्टार्टअप रहेगा या कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी, जैसे कि अभी बिग बास्केट वगैरह भी सर्विस दे रही है, तो मैं वहां से भी ऑर्डर देके विद प्रॉपर डिस्काउंट डोर स्टेप डिलीवरी ले सकता हूँ, तो उनके लिए थ्रेट होगी डीमार्ट जैसी कंपनी के लिए। टाटा ने कुछ एक लिया है ऐसा, टाटा ने 65% एक्वायर किया है बिग बास्केट में। हाँ, मोर देन 65। टाटा का बैकिंग आ गया, सोचिए फिर। हाँ, तो उनके लिए थ्रेट हुआ ना डीमार्ट के लिए। ठीक है, एकदम ठीक है। और क्या थ्रेट हो सकता है? सोचिए, दिमाग चालू कीजिए एकदम। तालिब, आप कुछ बोलिए, क्या थ्रेट हो सकता है? कोई रिटेल कंपनी का, जो भी ठीक लगे बोलिए। साइट हटे, आप कुछ बोलिए, जो भी दिमाग में आ रहा है, गलत हो चलेगा, नो प्रॉब्लम। सर कोई इंटरनेशनल कोई ब्रांड आ गया है जिसने और सस्ते दामों में कोई एरिया एक्वायर करके उसमें स्टोर्स ओपन करना चालू कर दिया, तो वो भी हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, बट एक बहुत सिंपल चीज है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का किसने कुछ बोला नहीं। क्यों? सिंपल चीज है। तो ऑल्दो ये आपका नेसेसरी प्रोडक्ट है, मैं मानता हूँ, बट फिर भी आपका इनकम कम हो जाएगा तो थोड़ा तो कम खाओगे ही भाई। टैक्सेशन, कौन सा टैक्सेशन बोलिए? टैक्सेशन तो बहुत होते हैं, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, उसमें कौन सा बोल रहे हो? उसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। बात गलत नहीं है आपका, टैक्सेशन जीएसटी के बोल रहे हो आप, ठीक है, उसका कैसे इम्पैक्ट हो सकता है बोलिए? बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी का ठीक है, बट कैसा इम्पैक्ट हो सकता है? रेट इंक्रीज, चलिए ठीक है, तो मोटा मोटी ये सब आपका ये रिस्क फैक्टर में ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको इंक्लूड करने होंगे। तो आपका की थ्रेट्स टू द कंपनी, अब ये कंपनी टू कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, सेक्टर टू सेक्टर, इट विल वेरी डेफिनेटली। व्हाट आर द की अपॉर्चुनिटीज़ आपको भरे भरे मिल जाएंगे भाई। कंपनीज आर माने एक्सपर्ट एंड मैग्नीफाइंग द अपॉर्चुनिटीज़ एंड हाइडिंग द थ्रेट्स। आपको थ्रेट्स खुद से ढूंढ के निकालने होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत दिखाएंगे भाई। ऑप्टिमिज्म का कोई एकदम हाइट कोई देखना चाहता है भाई, इंडियन कंपनीज का एनुअल रिपोर्ट पढ़ लो। एनीवेज, अच्छा, देन प्रोडक्शन प्रोसेस, if manufacturing firm, then source of raw material. This was I have explained this thing many times in sectoral report writing. Only very few candidates have properly included this data. Very disappointing. Video already available है, उसको देखते नहीं हो तो फिर फालतू रिपोर्ट बना के क्यों भेजते हो आपको? चलो इसको देखिए। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसका क्या प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस कैसे तैयार करता है उसको समझना हो, ठीक है। वो किसी को आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दे देता है, किसी को अरे उसको क्या नाम क्या था उसका, आउटसोर्स कर देता है, वो सब समझिए।
ठीक है, कि ये आउटसोर्सिंग करके कितना करता है। अब आप HUL का देखोगे या फिर आप ब्रिटानिया का देखोगे तो उसमें अगर आप उन लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे एंड कोई ब्रिटानिया का आप अगर केक या फिर बिस्किट अगर आप पैकेट उठा के देखोगे तो देखोगे कि ब्रांडेड एंड मार्केटेड बाय ब्रिटानिया, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, एंड वो जो फैक्ट्री का नाम होगा मैन्युफैक्चरर वो आप ही का कोई आसपास का ही कोई लोकल मैन्युफैक्चरर होगा, राइट। कोई अच्छा कारखाना है उन लोगों का, ब्रिटानिया के साथ टाई अप है, उसने आउटसोर्स करके ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके एकदम पैकेजिंग करके दे देते हैं, ये ब्रांडिंग करके ये मार्केटिंग खुद का इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये बेच देता है। या कभी कभार तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी ये लोग आपका क्या बोलते हैं आउटसोर्स कर देते हैं, भाई तुम ही कर लो, हम लोग इसका एक मार्जिन रख लेंगे खुद का, तुम लोग ही देख लो, वैसा भी होता है, राइट। तो आप अपना प्रोडक्ट कैसे तैयार कर रहे हो, FMCG का मैंने बोला, आप स्टील का खुद ही आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो स्टील। अब आप कुछ कंपनीज ऐसे हैं जैसे कि आपका प्रकाश इंडस्ट्रीज वगैरह एंड मेनी अदर कंपनीज आर आल्सो देयर, माने दे आर अमंग द स्टील कंपनीज आई एम सेइंग, दे वुड बी बाइंग द molten steel from someone, then they would give it a final shape and then they will be selling that final product to the other, माने they are whoever their consumers are। consumer मतलब ये नहीं है कि आप और मैं, B2B is also consumer, मतलब कि who is the consumer for टाटा स्टील, आप मैं हूँ, ठीक है, इनडायरेक्टली है, बट डायरेक्टली who is the माने फर्स्ट कंज्यूमर, मारुति टाटा मोटर्स में अगर लोहा लगता है, लेट्स से कि दे आर बाइंग इट फ्रॉम टाटा स्टील, तो दैट इज द थिंग ना, आपका एंड कंज्यूमर कौन है, तो उसको समझिए। तो प्रोडक्शन प्रोसेस, इफ मैन्युफैक्चरिंग फार्म, देन सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से है, प्रोक्योरमेंट कैसे कर रहा है, इंटीग्रेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, मतलब आप अपने वैल्यूएशन में कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस को, जैसे कि मैंने बोला गिव द एग्जांपल ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स, हाउ दे हैव माने इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हाउ दे हैव done the backward integration. So that is the thing that I was telling you guys. Raw material procurement का from captive sources, or you were importing or you were taking it from others. Let's say माने क्या बोलते हैं, किसी और इंडियन कंपनी से बाई कर रहे हो, इट्स अप टू यू, तो उसको आप देखिए। प्राइस ऑफ द इनपुट्स, रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है, ऑल द इनपुट्स, माने आप प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट तो ये वेरी करता है। बैंकिंग में आपका प्राइसेस ऑफ इनपुट क्या होगा, बैंकिंग सेक्टर में व्हाट कुड बी द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स, HDFC बैंक का इनपुट कॉस्ट क्या है, बोलिए जल्दी, व्हाट इज द इनपुट कॉस्ट फॉर HDFC बैंक, ये इसका इनपुट कॉस्ट कहाँ खर्चा होता है, HDFC बैंक का इनपुट कॉस्ट कहाँ है? सर बेसिक लैंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, पे करना होता है। इनपुट कॉस्ट लैंड नहीं है। कस्टमर का क्या, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, हाँ बोलिए ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बोल रहा हूँ। एक बैंकिंग कंपनी का व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर अ बैंक का रॉ मटेरियल, शाबाश प्रतीक, बाकी लोग बोलिए, वही तो चीज है। देखिए let's say you have account in HDFC Bank, personally I have my personal account in क्या बोलते हैं ICICI Bank, all of you have made the payment in ICICI Bank, actually it was my personal account, from that account we forward the payment to company's account, this is the way, anyways। तो मेरा तो अकाउंट है भाई ICICI Bank में, तो ICICI Bank का इनपुट कॉस्ट क्या होगा, मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में लेट्स से 10 लाख रुपीज़ रखता हूँ, ठीक है, तो अब उसके ऊपर तो उसको तो इंटरेस्ट देना है भाई, तो दैट इज द इनपुट कॉस्ट ना। मैं अगर FD करता हूँ तो उसको 6% से ऊपर, अभी तो आई थिंक 6% से ऊपर ही चल रहा है अभी, तो FD के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, तो इजंट एट द इनपुट कॉस्ट। द रॉ मटेरियल क्या है भाई, ये लोग मेरे से पैसा लेता है, किसी और को जाके पैसा चिपका देता है, लोन देता है, काम तो वही है, तो इसका रॉ मटेरियल क्या हो गया, पैसा, सिंपल डिपॉजिट्स। कासा बोल के कुछ सुना है, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, दैट इज द थिंग ना। दिस इज वाई जैसे कि भाई कासा रेशियो ठीक होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दिस वाई दे आर सेइंग दिस थिंग्स। सो दिस इज द थिंग, आपका इनपुट कॉस्ट क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उसका इनपुट कॉस्ट का आप कैसे रेगुलेशन कैसे आप मेंटेन कर पाओगे। आपका इनपुट कॉस्ट फॉर बंधन बैंक, देयर इनपुट कॉस्ट इज सो हाई। सी why this Bajaj Finance, they have grown so significantly because their input cost is so low. They can borrow money at what cost you cannot imagine. Okay, in our company also, Value Search,
and personally we are also using that same service, but ValueSearch is using it in a different way, so it's a different thing. But yeah, personally what we in our family is doing is that if we want to take a loan against security, so what we do is that we pledge our shares with one company and then we get the money. So we are currently doing it with Bajaj Finance, although they are actually it is a subsidiary of Bajaj Finance, it is Bajaj Securities. So we pledge our shares over there and we get funding for that, and then we are investing it in the share market. Personally I also do that same thing. I still have loans with them, so they can provide the loan at I am getting the loan at 8.75%. आप पूरे शेयर बाजार में चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, HDFC, ICICI, एक्सिस, आप बोलिए आई विल बी ओपनिंग एन अकाउंट ऑफ 1 crore रुपीज़, आप बोल दीजिए जाके मेरे को लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी अकाउंट चाहिए, उसमें आप 10% इंटरेस्ट दे के दिखाइए, कहीं पे मिल जाए आपको 9% से नीचे कहीं भी मिल जाए, आई विल गो एंड ओपन माई अकाउंट ओवर देयर। 9% ही ला दो ना, 9% ही ला दो, यहाँ पे थोड़ा झंझट है, यहाँ पे थोड़ा इश्यूज है, ठीक है, मतलब लोन का इंटरेस्ट ठीक दे देता है, बट क्या बोलते हैं, प्लेजिंग का प्रोसेस बहुत झंझट का है। वी हैव टू लिटरली सेंड द लेटर टू पुणे, मेनी टाइम्स वी हैव डन दिस, स्पीड पोस्ट में भी नहीं होता है तो क्या करें, अब ये आपका उसका क्या है, DTDC से पुणे में लेटर भेजना होता है कि भाई ये प्लेज करना है, ये डॉक्यूमेंट है। कोलकाता का कुछ काम ठीक ठाक नहीं होता इन लोगों का, पुणे का दे हैव देयर हेड ऑफिस, सो दे आर वी हैव टू सेंड द लेटर। सोचिए ईमेल के ज़माने में लेटर भेजना होता है, दैट इज द थिंग। बट उतने इंटरेस्ट रेट में आप कहीं पे भी आप जाके ढूंढ के दिखाइए, तो वो मुझे 9% पे लेट से दे आर गिविंग मी मनी, उसका बोरोइंग कॉस्ट क्या रहेगा? 9% रहेगा, 8% रहेगा, रहेगा क्या उतना कम? नहीं रहेगा ना, उससे कम ही रहेगा। आपका इनपुट कॉस्ट जितना कम होगा उतना ही कम रेट में आप किसी को लोन दे पाओगे, तो आप ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन करोगे कि नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे, यू हैव टू। बट आपका अगर बोरोइंग कॉस्ट खुद का ज़्यादा है, भाई आप किसी को कैसे आप कम सस्ते में आप लोन दोगे? नॉट पॉसिबल यार। दैट इज द थिंग रिगार्डिंग दिस इनपुट कॉस्ट आई वाज डिस्कसिंग। रिलेशन विद सप्लायर्स, आपके जो सप्लायर है उसके साथ कैसा रिलेशन है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। दिस इज वाई दिस बिग बफर, दिस फ्यूचर डिटेल हैज गॉन बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि रिलेशन विद द सप्लायर्स इज रिडिक्यूलस। इनिशियली दे स्टार्टेड विद 30 days of credit period, and after that what they have done कि 45 days, 50, 60 days, 70, 80, 90। अभी ये तो ट्रेडर्स को अभी तो पैसे ही नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिले, बंद हो गए, ठीक है। सो दिस इज द सप्लायर विद क्रेडिटर्स, एंड दिस इज द थिंग डीमार्ट इज प्लेइंग ऑन। दे आर आप लेट्स से मैं डीमार्ट हूँ, मैं आपसे माल खरीद रहा हूँ, मैं आपसे लेट्स से सोप ले रहा हूँ, ठीक है, सोप ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई आज आप माल दे दो, 1000 पीस लेट्स से सोप चाहिए, एंड आई एम पेइंग यू राइट नाउ, और आई एम सेइंग भाई मेरे को सोप दे दो 1000 पीस, आई विल पे यू विद इन 2 days। डीमार्ट सोचेगा अरे ये, वो सप्लायर सोचेगा लेट्स से हिंदुस्तान से मैं डायरेक्ट खरीदता हूँ, हिंदुस्तान यूनिवर्स से, वो सोचेगा भाई मैं रिलायंस को बेचता हूँ, ये 30 दिन में पैसा देता है, ये मैं स्पेंसर्स को देता हूँ, ये 45 days में पैसा देता है, बिग बसर को अगर मैं बेचता हूँ तो पैसा मिलेगा कि भी नहीं, वो भी एश्योरेंस नहीं है। और मैं डीमार्ट को बेच रहा हूँ, बोल रहा है कि भाई 2 दिन में दे दूंगा। भाई इसी को माल बेचना है, किसी को बेचेंगे नहीं, बाहर में जाओ सब कुछ, मेरे को इसी को ही बेचना है। दैट इज द थिंग, दैट इज द स्ट्रेटेजी। एंड वो बोलेगा भाई सुनो सुनो सुनो, तुम रिलायंस से कितने दिनों में पैसे लेते हो? बोले भाई 30 days में। स्पेंसर से कितने? 45 days में। बिग बसर उसका छोड़ ही दो भाई, आप तो जानते ही हो सब कुछ। ठीक है भाई मैं तुमको आज ही पैसा दे दूंगा, 2% डिस्काउंट और लगेंगे, भाई आज ही ले लो, ठीक है चलेगा भाई, 2% थोड़ा ज़्यादा है भाई, 1% कर दो, थोड़ा बार्गेनिंग चलेगा, 1% और एडिशनल कैश डिस्काउंट लेगा तो डीमार्ट सस्ते में नहीं बेचेगा तो क्या मैं और आप बेचेंगे? दैट इज द स्ट्रेटेजी एंड दैट इज द ब्लू ओशन दे हैव क्रिएटेड इन देयर सप्लाई चेन में। वो सब वैल्यू क्या बोलते हैं उसका, ब्लू ओशन का बात चल रहा था ना, तो वो आपका सप्लाई चेन में है, कहाँ है आपका वैल्यू, आप कहाँ क्रिएट कर रहे हो बिजनेस में, दैट इज द थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। सो दिस इज द पार्ट ऑफ इट। तो इसको समझिए एकदम अच्छे से, रिलेशन विद सप्लायर्स, ठीक है, क्रिएटिव टर्नओवर, तारपरे आपका पेबल डेज वगैरह, ये सब रेशियोज, आपको रेशियोज बाद में समझाएंगे। अभी सिंपली कीप इट सिंपल, वेरी सिंपल, वही इंटरनेट पर जाके थोड़ा रिसर्च कीजिए, पढ़िए, उसके बारे में समझिए, उस पर काम कीजिए। आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, नाउ दिस आर द सिंपल थिंग्स दैट यू शुड बी इंक्लूडिंग। जस्ट अ सेकेंड।
So updates from press release. So these things, how you should be putting these things, I will explain. Updates from press release, investor presentation, then after listening to last at least 2 con calls, review of the con call and management's guidance. ये management का guidance in IT sector, it is considered as some Vani from Gita itself. So it is so important, this management guidance thing. मैंने IT sector में तो this is, अरे बाप रे बाप, भगवान ने आके कुछ बोल दिया, वैसा माना जाता है इसको. अच्छा, management stone, this is one damn thing which is the deciding factor for me, at least personally. I refer to only this thing. मतलब management analysis, I have tried many other ways. I have never been able to do correct evaluation of the management. Actually, I kind of failed, but kind of learned a lot when I invested in this company. The company was actually good. I won't say the company is still so bad, but I am not so sure. I had investment in this company called नाम क्या था? नाम क्यों भूल जाते तुमने? They have this recycling business. क्या नाम था? एक सेकंड रुकिए, देखता हूँ. हाँ, एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग, एंटोनी वेस्ट मैनेजमेंट या एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग. एनीवेज, तो इस कंपनी का क्या इशू था? इन लोगों का ना, मतलब मैंने कॉन कॉल सुना एंड कुछ आपका CNBC पर मैंने कुछ मैनेजमेंट इंटरव्यूज भी मैंने सुने. I like the business, no doubt. I really like the business. Although they are the second best player in this thing, and the first best player was good, all right. But this company I found quite lucrative. Valuations were really good. Cheap ही था, हाँ. We can say that it was evaluated cheap valuation. All the stuff. I invested it at around, I think 364, 365 few months back, and had to sell it around 280 because something related to management came out regarding some taxation thing and corporate governance issues. And when I just got that news, I went back, checked it, and it was on Friday. So Monday ko I had some really important work, so I couldn't even open the demat account in order to sell the shares. ट्यूसडे भी प्रॉब्लम हो गया, वेडनेसडे को देखा 280 है, भाड़ में जाओ. तो वही मैनेजमेंट का टोन इन दोज इंटरव्यूज ना, मतलब थोड़ा डाउटफुल था, थोड़ा इधर उधर का था. आई वोंट से कि मैनेजमेंट इज 100% बैड. आई एम नॉट गोइंग टू डिक्लेयर एंड आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म. तो नो, this is a disclaimer. I am not passing any judgment on the management of Antony Waste management. Probably they are great management. I do not have any idea, but this is just for the educational purpose. So please do not take it in a serious manner or anything. We are just discussing. We are just expressing our own likes and dislikes. Please do not take it in a different way. All right. This is my personal opinion. Yeah. So this was a disclaimer because I am going to upload it. I do not know what can come up. So yeah, I had just a simple safer side disclaimer for it. अच्छा, तो management stone, understanding of it is very important. इसको कैसे समझे? I will do one thing with all of you guys. I will do one thing with all of you guys, that I will be attending one conference call with all of you. Okay, I will be attending one con call with all of you live. The con call will be played, and then parallelly I will be doing the analysis along with you. Okay, so I will be taking you guys through each and every step of that con call, and whatever the analyst will be asking na, so I will be taking you guys through all of those things. What is the tone of the management, how they are expressing it, how they are addressing it. So I will attend one con call, at least one. एक कॉन कॉल से तो कुछ होगा नहीं, बट ठीक है, एटलीस्ट एक तो करेंगे ही, अटेंड तो करेंगे ही. नहीं तो एटलीस्ट 2-3 कॉन कॉल तो ठीक है, वो अटेंड करेंगे आप लोगों के साथ बैठ करके. सो नेक्स्ट थिंग इज दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर्स. तो लास्ट 5 साल के एनुअल रिपोर्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, प्लस लास्ट 5 ईयर्स का PL. ओके, तो अच्छा, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एनालिसिस कैसे करें, इसका जस्ट अ सेकेंड. Just a second. My internet got disconnected. Just a second.
So the financial statement analysis. So last 5 years profit and loss statement analysis, you guys have to do this analysis. Now how to do it? It is already shared on the YouTube, so you can refer to that. Balance sheet analysis, cash flow analysis, trend analysis of last 5 years. Then margin analysis is there, EBITDA analysis. Hello. Okay. Yeah. So EBITDA analysis, profit after tax analysis, all these things you have to do. So this entire part of financial analysis and this part of this is also there, ratio like debt to equity, then return on capital employed, return on equity, then current ratio, profit price to book ratio, then asset turnover ratio, EV by EBITDA, EPS, cash EPS, CAGR, etc. So this kind of company specific relevant ratios. So I'll be taking all of you guys through it. एकदम हर एक point we will be covering. So we need one more session in order to cover all those things. This was the qualitative analysis. मतलब इसमें business profile analysis was a part of it, but the quantitative analysis part is also very very important. मतलब whatever we have discussed so far whatever we have discussed from this point till all the way down till this point ना, इतना कुछ जो हम लोगों ने discuss किया है. So the summary of it is just this. इतना कुछ एनालिसिस कर लिए, राइट, कि आपने क्या बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सॉरी आई मीन अपने बिजनेस का देख लिया, ये स्ट्रेटेजी, ये स्पेंडिंग, वो कैपेक्स, सब कुछ देख लिया. बट व्हाट इज द अल्टीमेट इम्पैक्ट ऑफ इट? वो कहाँ दिखेगा? वो दिखेगा यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे. ये सारे रेशियोज, ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि असल में अब जाके हुआ क्या है. सो डोंट वरी, वी विल हैव अनदर सेशन इन आवर नेक्स्ट सेशन दैट इज गोइंग टू बी ऑन next Friday. Today is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. On Friday we will be having our next session at 7 o'clock. So in that session we will explain all these things over there. All right, everyone? Any doubt?